Namaste. Our guest, Mr. Rajendra Singh, Mr. Meet Joshi, Dr. Chandramouli Pathak, Mr. Karthikebhai Sarabhai, our GC member as well as founder of CEE, friends and family members of Shri Nirubhai Desai's family, ladies and gentlemen, wish you a very good evening. First of all, I apologize, there was a slight delay in starting the program because along with this function, we had a very nice quiz and a drawing competition for children upstairs. And not to discourage them, one of our guests, Meet, was involved in the prize distribution. So that's why we got delayed. So I once again apologize for that. This is a topic dear to all. Climate change has become a global concern over the last few decades. Besides, these climatic changes affect life on Earth in various ways. These climatic changes are having various impacts on the ecosystem and ecology. The climate started changing a long time ago, mainly due to human activities, but we came to know about it in the last century. We have been learning about it in school, me and you all, and even the youngsters are doing more, in this field today. So this is just background, what we all know, but then this is all about what we intend to do. The warming of the Earth's surface causes ozone depletion, affect our agriculture, water supply, transportation, and several other problems. And although, as we all know, there are numerous reasons for the climatic change, one of the main reasons is we, the humans, due to the need and greed, I underline greed, we have done many activities that harm the environment. और ज़रूरत और लालच के कारण हमने कई ऐसे काम किए हैं जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं, and we all know about it. Many plants and animal species have gone extinct due to the human activity, and these climatic changes have a negative impact on the environment. The glaciers are melting, ocean levels are rising, the carbon dioxide in the air is increasing, forest and wildlife are declining, and water life is also getting disturbed due to climatic changes. અને આપણે બધા પણ અનુભવ કરી રહ્યા છે દુનિયામાં, આપણા દેશમાં, પરદેશમાં. You can see the seasons, you have some hot spells in the winter, unseasonal rain here and there, forest fires, earthquakes, આ બધું આપણે જાણીએ જ છે. So this is what, going on. And finally, because of our, as I repeat the word, greed, maybe in the name of development, there are serious things like depletion of our water table and other water-related issues, actually. So if we do not act and it continues to go on like right now and then, a day in future will come when humans will become extinct from the surface of the earth. But instead of neglecting these problems, we start acting on this, and then we can give the earth and our future. So this is the basis of this center, one of the activity center, to create awareness. Yes, there are so many institutions doing a lot of work, बहुत सी संस्थाएं काम करते हैं, but अपनी तरह कैसे हम छोटे प्रयास करेंगे कि ये awareness के बारे में हम साल में few activities जो कुछ effective हो ऐसा करेंगे. So AMA has this tradition that we have about 58 activity centers. This is the latest edition. And it's a tradition that some sponsor or donor comes. It's not just taken like that, but we commit an activity. It's not only commit an activity, what we can promise to do and fulfill. We will not promise them too many things, but whatever we agree, we want to carry out those activities. So, and this is an appropriate, relevant, and an appropriate time for this inauguration. Just on Sunday, it was the World Environment Day, and today I was told it's the World Ocean Day, appropriate for water. And little bit about the center, of course, Professor Pathak will be talking about that, but I'll take from the AMS perspective. The Nirubhai Desai AMS Center for Climate Management is established by the Nirubhai Desai Smarak Foundation, Ahmedabad, aiming to contribute significantly to address present and future changes arising out of climate change for betterment of the society and the next generation. We are thankful
to Dr. Chandramouli Pathak and the family members who have initiated the idea of setting up this Center for Climate Management. In fact, even one of the other family members, Professor Vishakha Ben Desai, who is in USA, in fact, she's the senior advisor. She's the senior advisor at the president of the Columbia University, and she also expressed that in her capacity, she will get good speakers in future for us. So very thankful to Vishakha Ben also. And about the foundation, Nirubhai Desai Smarak Foundation, Ahmedabad, was established by the family members and well-wishers of Shri Nirubhai Desai. That's the father-in-law of Dr. Chandramouli Pathak, who was a renowned journalist. A lot of people here will be knowing that. He was a very well-known writer, editor Gujarat Samachar, and a social activist and a freedom fighter. Even in those late, Pathak Sahib told me that in those days he has written a book about water conservation. He was an institution builder and a visionary leader, having promoted institutions like Ellis Bridge Arogya Samiti, that's Pritam Nagar Akhada, Mountaineering Institute, Mountaineering School at Abu, Institute of Area Planning, and other institutions. In the early years of the 60s, he anticipated water and climate changes and was contributing and writing for such issues, Yeah. And I'll very briefly introduce today's distinguished guest. We are really honored to have them. Our chief guest is Mr. Rajendra Singh, Jal Purush of India. An Ayurvedic medicine graduate and postgraduated in Hindi literature, he is the chairman of Tarun Bharat Sangh since 1985, and under his dynamic leadership, TBS is working on restoring life and hope to barren land of Rajasthan. Such a difficult task. Kudos to you, sir. Mr. Rajendra Singh has got, he has done so much work and has won many accolades and awards. But just to mention a few, he was the winner of the Stockholm Water Prize in 2015, an award known as the Nobel Prize for Water. He has been honored by Asia's most prestigious Ramon Magsaysay Award in 2001 for community leadership, India's most prestigious Jamnalal Bajaj Award in 2005, and many more. Popularly known as Jal Purush or the Waterman of India, Sri Rajendra Singh is also heading a national network of organizations working on water issues. Rashtriya Jal Biradari, the network is working for restoration of almighty and small rivers of the country. Khub khub dhanyawad Rajendra Singh ji. And he has traveled from Kazakhstan. Yesterday night he was there, overnight travel, and then via Delhi he came here. So in spite of his tough schedule, he made it today for this schedule. We are really honored to have him. And then we have another guest who is a young speaker, a young conservator. He's Mr. Meet Joshi. Meet, a very interesting work he's doing. He's a bee conservator and a researcher. He has been observing and working with bees for more than 5 years. He has visited more than 30 forest reserves and the great Himalayas and has learned directly from the Arankyas or the Adivasis how nature works. Later, he founded Saha Astitva Private Limited, under which he works for the welfare of the bees. Meet is contributing to the protection of environment through bee conservation. Bees pollinate the plants, which help plants to reproduce. Bees even help plants to survive by preventing inbreeding. And these are the objectives of his company: to promote the ethical business around bees, to play a major role in making agriculture an organized industry, to create job opportunity in beekeeping as a professional occupation, to introduce IoT, artificial intelligence, machine learning, and mobile sensor-based technology for real-time data for beekeeping and its impact on socio-economic development. So it's so nice to see young people working in this direction with, keeping our traditions and introducing more modern techniques. And we are also honored to have this young conservator with us, And now, before we proceed further, felicitations to our guests. I'll request Karthikeya Bhai to felicitate Rajendra Singh ji with a bouquet.
And thank you, sir. I'll welcome our young guest, Meet. And I'll request our Executive Director, Unmesh, to welcome Chandramouli Pathak here, please. Unmesh. So before the inauguration, I think Chandramouli Pathak Sahib will give a brief about our activities, and then we'll inaugurate by lighting the lamp. Thank you. Thank you, Radia Bhai. Our honorable guest, Singh Saab, Meet Kartikeya Bhai. My all dear, concerned, committed, and learned audience. When we were organizing this, people were worried. कितने लोग आएंगे? मैंने बोला, this is not a number game. We want only people who are really committed and concerned. So thank you very much, all of you, for joining us and joining this movement. सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि this is the wonderful opportunity for all of us to have person like a Singh Saab, who is an really committed grassroots worker. Apart from Padma Shri and other thing, I say he has really worked very well. So we are very lucky, sir, to have you. He has flown directly from उज़्बेकिस्तान, रात को सोना वारना बैठना, इतनी तकलीफ के बाद भी आप आए तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका. And Niru Bhai was always fond of young people. So I am very happy to have Meet here because he always wanted to promote young people. So it is a wonderful combination. And just I will take some few moments to tell something about Niru Bhai, though most of you are from family members, you may be knowing, but just for the benefit of our guests and other people, Niru Bhai was well known as a Nide of Africa. He was basically a journalist working with Gujarat Samachar, and started long time back. The first Loknath in early 40s, I think, 42, and then it became very popular. As we tell him, it is our Sadabahar Niru Bhai. I think we had a book published by him because his interests were varied. I think right from art, literature, mountaineering, drama, he has done a lot of activity, and I think all of us were very lucky because of Papa, the popularly known as Papa. We used to get very renowned people, and I have a long list, but I'll say it starts from all Morarji Bhai, Chandrasekhar, Ravi Shankar Dada, and then also he was in newspaper, so Amitabh Bachchan, Rushikesh Mukherjee. Then we have all economists like Lakadawala, Dantwada, Mrunal Sen, and then drama, INT, Praveen Bhai Joshi, Sarita Ben, they always used to come at our home and we used to discuss with them. And that is the kind of the culture and understanding we had. And Papa had spread this amongst many people, and one of the desire was that why don't we do something for the youth and Gujarat. He was really concerned and worried about the Gujarat growth and developmental problems. And therefore he started writing a lot about it. And he used to talk to people, do debate on it with politicians, with educationalists, with NGOs, and really push forward all the work. And as Radia Bhai already say, he built up institution. But the one good thing was, he was also a freedom fighter. He had a choice of going into politician, but he said, no, I don't want to do this job. I would really like to work with people. And therefore he started working with young people with water related problems, with development problem, economic problems, social problem, and we are very happy that we are continuing. So first of all, I would like to thank AMA for allowing us to establish this center, and thanks go to Radia Saab, Dikshit Saab, and George Bhai for allowing us. The whole team has done. And one of the reasons while we are selecting and thinking of doing it, we did a lot of activity, recognizing good work, giving awards, doing a lot of activity. But when they thought, how can we continue this? So this is a forum, this is a professional forum, management forum, where it will be done regularly basis in a very professional manner without any prejudices. So I'm very happy and lucky to have got this center with you. And with all support from your side, we'll be able to really do good thing. Something on the lighter side of Papa's, I think he was concerned about water. So I think Chitra and all other people always used to tell us, okay, right from 1980, he used to say, don't fill up the whole glass when the guests come. Only fill up the half glass. पानी का प्रॉब्लम होने वाला है. और जो बचा हुआ पानी आप उसमें गार्डन में डाल देना. तो वहीं से ये कल्चर हुआ है. तो आज हम चाहते हैं कि आप सब भी ये कल्चर में हमारे साथ जुड़ें, उसमें कुछ करें.
ये सेमिनार, ये सेंटर बनाने के पीछे काफ़ी कुछ उद्देश्य तो है. जब नया सेंटर बनता है तो बड़ी बड़ी बातें होती है. सो मेनी पीपल वर आस्किंग अस, व्हाट आर यू गोइंग टू डू. वी आर, so I always used to say we want to do activity which are very qualitative and impact generating activity. We don't want to have lot of activity, 10 15 activity, but we plan to do only 2 or 3 activities. uh, Pappa's nature work has given him he was a thinker ahead of the time. ये पानी का, क्लाइमेट के प्रॉब्लम तो सब कुछ जानते हैं. तो पहले तो हमारी ये कंसर्न है कि प्रॉब्लम तो सब कोई जानते हैं, तो प्रॉब्लम के बारे में क्या रोना, क्या बताना, क्या डेटा देना, इनके लिए क्या हो सकता है, व्हाट इज द सॉल्यूशन, हाउ कैन वी कंट्रीब्यूट, what individual as an individual we can do. So that is what we are planning to do. So we will plan some activity, and today we will learn many things about what we can do because we have already done a lot of activity. So that will be a wonderful opportunity for us. The idea is not to create something new, but we want to first, हमारे देश में जैसे यार सिंह साहब आए, काफ़ी अच्छा काम हुआ है, तो पहले तो हम इसको डॉक्यूमेंट करना चाहते हैं, और जब अच्छा काम होता है तो उसको रिप्लिकेट करना, स्केल अप करने की बहुत ज़रूरत होती है. तो हम कुछ इसमें काम करना चाहेंगे. जो भी अच्छा काम हुआ है क्लाइमेट में, वाटर में, कैन वी डॉक्यूमेंट, कैन वी टेक इट फर्दर विद सपोर्ट ऑफ ऑल पीपल. Second thing, the young generation, how can we are very happy that today Meghaben and Sahil Bhai have organized a competition for environment, drawing, poster for young people. So we'd like to bring in young people. हम लोग कहते हैं ये नए जनरेशन के लिए करना है. They are very sensitive, they are very initiative, they are very innovative. तो young people को कैसे लाया जाए, तो इसके बारे में मैं सोच रहा हूँ. Since I'm in the field of entrepreneurship, we can also promote entrepreneurship, innovation and new technology, जैसे मीत भाई ने किया है. तो इसके बारे में हम क्या कर सकते हैं वो भी हम सोचना चाहेंगे. तीसरी बात है कि हम प्रॉब्लम पूरी दुनिया के कहते हैं, हमारे एक एक्सपर्ट है पटेल साहब, वो कहते हैं कि जब तक आप सही प्रॉब्लम आइडेंटिफाई नहीं करेंगे तो सबसे पहले तो ये समझना है कि व्हाट आर द प्रॉब्लम, रियल प्रॉब्लम. एंड Papa also used to say, find out local problem and local solution, which is going on very well. So we would really like to work on local, and since AMA is established in Gujarat, we would first of all like to concentrate on Gujarat. And we know all problems, we cannot treat them at a same level. Kutch is different, Saurashtra is different, South is different. So we'll have to have region specific local solution. And the third thing I learned, I think this was the experience of Sama Saab, who is also an expert on Vasmo. He said, ultimately the development will happen only by community and people. So it has to be a community and people level. So we'd like to work with a lot of community-based organizations, NGOs. Now, industry and corporate also have a role to play. I don't know what they can do, how they can do, but we would like to bring in corporate sector into it, because industrial-based, industrial uses is also a different issue. A lot of academic institutions also will be involved. So how do we really inculcate the spirit of understanding, adopting and applying these issues at an early age? So we like to integrate it with a lot of educational institutions. I think what I would like to say, rather than saying more activities about, this is a very infant stage. So I cannot claim that we are going to do everything. But like entrepreneurs, मीत भाई ने जब चालू किया होगा तो पता नहीं था कहाँ पहुँच जाएंगे. सिंह साहब ने भी काम शुरू किया होगा तो पता नहीं था कहाँ पहुँच जाए. हम भी ऐसे सोचते हैं शुरू तो करें, फिर जैसे जैसे ऊपर जाएंगे दिखता जाएगा क्या करना है, आगे करते जाएंगे. तो we'll just plan for immediate 1 year and then work out some plan. I am very happy to have you all here. This program is not for us. एक चीज़ मुझे हमेशा दिमाग में आती है और चिंता का विषय बन जाता है कि हम लोग यही समझते हैं कि ये तो हमारा प्रश्न है ही नहीं, हमारा कहाँ प्रॉब्लम, हमारे घर में तो पानी है, हमारे घर में तो ये है, हमारे घर में ये है. तो एक तो ये चिंता है. दूसरा, जब आएगा तब देखा जाएगा. हमारे लोगों का विश्वास है ना, जा रहे आवश्यक तारे पड़ी जैसे. पर आई थिंक दिस इज़ द राइट टाइम. वी आर इवन लेट. सिंह साहब कहेंगे हम तो काफ़ी लेट है इसमें काम करने के लिए. और तीसरा चीज़ कि हम लोग ये काम करने के लिए साथ में सब कैसे काम करें. तो आज हम आप लोगों से भी कुछ कमिटमेंट चाहेंगे, आप लोगों के सजेशन चाहेंगे. हमने फीडबैक फॉर्म रखा है, आप कुछ सजेस्ट करिए कहाँ करना चाहिए काम, कौन से एरिया में करना चाहे. इन सम ऑफ यू आर इंटरेस्टेड वॉलंटरी इन वर्किंग विथ अस, विल बी वेलकमिंग ऑल ऑफ यू, बिकॉज आई थिंक दिस इज फोरम. नीरू भाई वॉज ऑलवेज डिबेटिंग, डिस्कसिंग, आर्ग्यूइंग. मुझे पता है कि जब पॉलिटिशियन की मीटिंग करते तो सबको इतना डांटते थे कि आप लोग कुछ काम नहीं कर रहे, चाहे वो मुरारजी भाई हो, प्रबोध भाई हो, कितने भी हो. सो आई थिंक वी वुड रियली लाइक टू डिबेट, बिकॉज द आइडिया विल इमर्ज ओनली फ्रॉम द डिबेट. सो
once again, thank you very much. And this center, I hope, will be going a long way. We want to make a contribution which can be felt, where there is some impact being felt. So, with this word, I would again like to thank you very much. And we are all eager, anxious to know and learn from our speakers today. Thank you very much. Thank you, Dr. Pathak. Yes, as you said, though we will not do so many activities, but whatever we will do, we will try to do systematically, and most important, try to create an impact, however small. So we'll proceed ahead, and now we will have the inauguration by our tradition mills by lighting of the lamp, please. I request all our guests to, come in the front for lighting of the lamp. ॐ चन्द्रमा मनसो जातचक्षोः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत दीपज्योतिर्परब्रह्म दीपज्योतिर्जनार्दन दीपो मे हरतु पापं दीपज्योतिर्नमोऽस्तु ते शुभं करोतु कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तु ते। Now, we will proceed ahead with the address by our special young guest, Mr. Meet Joshi. I think you have a presentation, so lights. Yeah, Unmesh, lights. યસ નમસ્તે એવરીવન. આપણે આજે શાંતિ મંત્રથી શરૂઆત કરીશું. સો તમે જો અહીંયા છે તમે વાંચી શકતા હોય તો પ્લીઝ મારી સાથે વાંચો. પૂર્ણમદ પૂર્ણમિદં પૂર્ણા પૂર્ણમુદચ્યતે પૂર્ણસ્ય પૂર્ણમાદાય પૂર્ણમેવાવશિષ્યતે. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. યસ, હવે હું થોડુંક નોર્મલ બોલી શકીશ. મને આજે એવું હતું કે આજે હું તમને બધાને કંઈક શીખવાડીશ, રાઈટ, પણ મને એવું લાગતું નથી કે હું તમને કંઈક નવું શીખવાડી શકું. તો અત્યારે તમારી સ્ક્રીન પર જે છે ને એ હું જ્યારે મારો એક્સપિરિયન્સ થઈ રહ્યો હતો આદિવાસીઓ સાથે અને જંગલમાં, ત્યારે મને ખબર પડી કે ભારતમાં 7 જાતની મધમાખી છે. આમાંથી કેટલાને ખબર હતી? રાઈટ સર, આપ હા, વેરી ગુડ, થેન્ક યુ. સો ભારતમાં 7 જાતની મધમાખીઓ છે. ગુજરાતમાં એમાંથી 5 અવેલેબલ છે. અને આપણે જે ગળથૂતીમાં મધ પીતા હતા એ દેશી માખીનું હતું, રાઈટ. અત્યારે તમે આજના ફેન્સી જમાનામાં જ્યારે તમે ગૂગલ કરો છો તો બધા ડૉક્ટર્સ એવું કહે છે કે તમારા બાળકને 1 વર્ષ સુધી મધ ના અપાય, રાઈટ. એટલે એનું કારણ છે કારણ કે એ લોકોએ યુરોપિયન બીસ પર સ્ટડી કરેલું છે, નહીં કે આપણી ઇન્ડિજિનિયસ બીસ પર. તો જ્યારે યુરોપિયન બીસ પર એટલે જ્યારે બીજની વાત કરીએ તો આ દુનિયામાં એક સારી વસ્તુ એ છે કે મેક્સિમમ રિસર્ચ વર્ક હની બીજ પર થયું છે, રાઈટ, હાઈએસ્ટ. પણ એમાંથી 95% રિસર્ચ વર્ક ઇટાલિયન બીજ પર થયું છે, નહીં કે એક બી ઇન્ડિજિનિયસ બીજ પર. એટલે જે બી તમારી પાસે ડેટા છે એ બધો, સોરી એવું કહીશ, કશો ઇન્ડિયાનો નથી, રાઈટ. સો હું જ્યારે એકચ્યુઅલી હું છે ને સરકારી કર્મચારી હતો એક ટાઈમે. પ્રોફેશનલ ક્રિકેટ રમવાનો પ્રયત્ન કરતો હતો, રણજી ટ્રોફી. પણ મારા પપ્પા થોડા સામાન્ય માણસ નીકળ્યા એટલે આગળ રમી ના શક્યો. અને પછી મેં સચિવાલયમાં નોકરી કરી અને બીજી 11 નોકરી કરી, જેમાં કન્સ્ટ્રક્શન પણ એક છે. તો મારા પપ્પાએ કીધું 2 વર્ષમાં તો 11 નોકરી બદલી ચૂક્યો છે,
તો હવે ત્યાં મધમાખીને પકડી છે તો ક્યાં સુધી ચાલશે? તો આજે 5 વર્ષ થયા અને કદાચ પારુલબેન અહીંયા જે છે એને નિમિષભાઈ એ દે આર ધ ફર્સ્ટ વન જેને મારો ઇન્ટરવ્યૂ લીધો હતો લગભગ અડધો કલાક અને કાન પકડીને શીખવાડતા હતા કે કોસ્ટિંગ શીખ, રાઈટ. સો યા પછી મારી જર્ની એકચ્યુઅલી આ નોકરીઓ છોડવાથી શરૂ થઈ અને ચેક બાઉન્સ થવાથી શરૂ થઈ આઉટ એટ ધ સે. અને ત્યાંથી પછી હું જર્ની પર નીકળ્યો. મારું ફર્સ્ટ ડેસ્ટિનેશન હતું દિલ્હી, કારણ કે દિલ્હી ઇઝ લાઈક હબ કે જ્યાં બધા હની પ્રોસેસિંગ થાય છે. ત્યારે મને હની વેચવું હતું, પણ પછી જેમ જેમ હું આગળ વધતો ગયો એમ મને ખબર પડી કે હની વેચવા કરતાં મધમાખી વધારે મહત્ત્વ ધરાવે છે. જ્યારે તમે પર્યાવરણની વાત કરો તો આ દરમિયાન હું ઘણા બધા આદિવાસીઓને મળ્યો. ત્યારે મને ખબર પડી કે ઇન્ડિકા સેરેના અલગ માખી છે, લિટલ બી એપિસ ફ્લોરિયા અલગ માખી છે, સ્ટિંગલેસ બીઝ અલગ છે, આપણી જે કોમન માખી તમે બધાએ ઝાડ પર જોઈએ છે, હું આગળ તમને બતાડીશ એના ફોટા, એ અલગ છે, એનું મધ અલગ છે. સો આવી રીતે જર્ની શરૂ થઈ અને હું સાઉથમાં જ્યારે ગયો ત્યારે જેનુ કુરુબાસ કરીને ટ્રાઇબ્સ છે. તો એ લોકો આજે પણ જ્યારે હનીને એક્સ્ટ્રેક્ટ કરે છે ત્યારે પ્રાર્થના કરે છે ભ્રામરી દેવીને, જે તમને અત્યારે સ્ક્રીન પર દેખાય છે, રાઈટ. ભ્રામરી દેવી એ પાર્વતીનું રૂપ છે કે જે ઓકે જ્યારે આપણે વેદની વાત કરીએ તો ઋગ્વેદ આખો પર્યાવરણ ઉપર છે, ઓબ્વિયસલી બધાને ખબર છે. તો એમાં ભ્રામરી દેવીનું મેન્શન છે, એટલે એ લોકો આજે પણ ભ્રામરી દેવીની પરમિશન લઈ પ્રાર્થના કરી અને મધ કાઢે છે, ને એ બી જેટલું કાઢવું જોઈએ એટલું જ. તો ત્યારે મને ભ્રામરી દેવી વિશે જાણકારી મળી અને પછી હું મારી જર્નીમાં આગળ વધ્યો અને જેમ કે મેં હમણાં મેન્શન કર્યું એપિસ સેરેના ઇન્ડિકા છે શરૂઆતમાં, એનું એક સ્પેસિફિક ટેકનિકલ હોય છે કે જે આવી રીતે જ મધપૂડો બનાવે. એના પછી છે દોરસતા. તો આ બધી બીજની સાઇઝમાં બહુ ફરક છે. મોટી બીજ છે, નાની બીજ છે, એમની કોમ બનાવવાની રીત અલગ છે, એમની જે ફોરેજ કહેવાય કે દૂર સુધી ખાવાનું લેવા જઈ શકે છે, રાઈટ. એમાં બધાના લિમિટેશન છે અને એવું કહેવાય છે કે મધમાખી અને ફ્લાવર એ જોડે એમનું એવોલ્યુશન સાથે થયું છે. એટલે જેમ કે નાની માખી છે, જેમ કે આપણે ત્યાં આજે ટ્રાઇગોના દેખાય છે ને નીચે જે એકદમ જેનું યુનિવર્સ જેવો આકાર છે, રાઈટ. તો ટ્રાઇગોનાની જ્યારે વાત કરીએ ને તો એ સૌથી નાની બીજ છે. સૌથી મોટી બીજ છે 30 mm અને આ છે 5 mm, રાઈટ. તો આ 5 mm બી એટલે છે અને આનું મહત્ત્વ આયુર્વેદમાં બહુ અને બહુ સિરિયસ મહત્ત્વ આપ્યું છે. એનું કારણ એક જ છે કે આ ફૂલની છેક અંદર જઈને, જેમ કે તુલસીના ફૂલ તમે જોયા હશે, દે આર વેરી સ્મોલ, રાઈટ. તો તુલસીના ફૂલમાં મોટી માખી બેસે ઇટ્સ ડિફિકલ્ટ, રાઈટ. આવા આયુર્વેદ જે બી છે સરને ખબર હશે, રાઈટ. રાઈટ, સર બધી બીજ વિશે જાણતા હશે, રાઈટ. સો બીજ એમાંથી કલેક્ટ કરે છે ને આનું મહત્ત્વ અને એવી રીતે છે, રાઈટ. અને આ છે સૌથી કોમન બીજ જેના પર અમે અત્યારે વર્લ્ડમાં મેક્સિમમ બી કીપિંગ, એટલે તમે જર્મનીથી મધ લાવો કે પછી ગમે ત્યાંથી યુએસથી લાવો, બધા એવું કહે છે કે ઇન્ડિયાના મધ કરતાં એ બધા સારા હોય છે. હું હમણાં એમને બધાને ખોટા પાડી દઈશ થોડી વારમાં, નો પ્રોબ્લેમ. સો આ છે બી બોક્સ. આના પર અમે અત્યારે રિસર્ચ કરી રહ્યા છીએ કારણ કે ઇન્ડિયામાં થોડી એની ઓકે ઇન્ટરેસ્ટિંગ આ હનીના કલર્સ છે. આ બધા નેચરલ કલર્સ છે, એટલે તમે જે બી ખાઈ રહ્યા છો હની, જે એવરી ટાઈમ સેમ કલર, સેમ થિકનેસ, સેમ ટેસ્ટ, સેમ ટેક્સચર, એ કોઈ દિવસ પોસિબલ નથી. કુદરત કોઈ દિવસ પોતાને રિપીટ કરતી નથી, પછી એ લીમડાનું ઝાડ હોય કે મધ હોય કે કંઈ પણ હોય, રાઈટ. એટલે આ બધા અલ્ટિટ્યૂડ પ્રમાણે અલગ અલગ મધમાખીના અલગ અલગ ફૂલોના અલગ અલગ મધ છે. ઇન્ડિયામાં મેં 160 પ્રકારના મધ જોયેલા છે જે અલગ અલગ ફૂલોમાંથી બનેલા, જેમ કે સનફ્લાવરનું હની, લીચીનું હની, એવી રીતે યુકેલિપ્ટસનું હની, રાઈટ. અને આ ઇન્ડિયામાં અત્યારે આ હાલત છે બી કીપિંગની, રાઈટ. આનાથી મધમાખીની હેલ્થ પર બહુ સિરિયસ ઇફેક્ટ થાય છે કે જ્યારે આપણે વાત કરીએ એમના બોક્સીસની, તો આ છે બ્રૂડ ચેમ્બર, જ્યાં મધમાખી, એમના બચ્ચા, એના લાર્વા બધા આમાં રહે છે અને એ લોકો એમાંથી જ મધ કાઢે છે. એટલે હું તમને એમ કહું કે તમે પ્રેગ્નન્ટ છો અને તમને કોઈ પેલા શું ડોરા કે જે બી પેલું હોય છે એમાં બેસાડી દે તો તમારા બાળક પર ચોક્કસ વિપરીત અસર થશે, રાઈટ. તો એ લોકો જ્યારે હની એક્સ્ટ્રેક્ટ કરે તો હનું એક્સ્ટ્રેક્ટર છે ને આમ ગોળ ગોળ ફરે,
તો એમાં લાર્વાસ પણ મરી જાય અને બીજ જે હનીની ક્વોલિટીમાં બી ખાસો એવો ફરક પડે છે. બાય ધ વે અહીંયાથી કેટલાને ખબર છે કે હની પાકે, લાઈક હની રાઈપન હોય કે ના હોય, કાચું હની પણ હોય, ખબર છે તમને કોઈને? મધમાખી મધને છે ને સીલ કરે એના વેક્સથી. એટલે જ્યારે હની સીલ થઈ જાય ત્યારે એ પાકી ગયું છે, એમાં બધા એન્ઝાઇમ્સ એડ થઈ ગયા છે, એમાં બધા વિટામિન્સ એડ થઈ ગયા છે, પછી તમે એને ખાઈ શકો છો. અને એનાથી તમારા શરીર પર જે આયુર્વેદમાં કહે છે ને કે આનાથી આ ફાયદો થાય, આનાથી આ ફાયદો, તમે આંખમાં નાખો, તમારી રેસ્પિરેટરી સિસ્ટમ માટે સારું, તમે લીવરને ક્લીન્સ કરે છે. તો એ બધું ક્યારે થાય? જ્યારે મધ રો હોય અને બીજે એને સીલ કરેલું હોય કે બીજે પ્રોસેસ કરેલું હોય, આપણે નહીં. રાઈટ? સો હવે ઓકે, આપણને બધાને ખબર જ છે કે બીઝ આર વેરી એસેન્શિયલ આપણા ઇકોસિસ્ટમ માટે. ઇટ્સ લાઈક 1 of every 3rd બાઇટ ઇઝ બિકોઝ ઓફ બીઝ, ડિરેક્ટલી ઇનડિરેક્ટલી. બધા એવું કહે છે કે પોલિનેટર્સ, બીઝ, બર્ડ્સ, બટરફ્લાઇઝ, બેટ્સ, આ બધા પોલિનેટર્સ છે, એનિમલ્સ ઓબ્વિયસલી. અને વિન્ડ પણ એક પોલિનેશનનું કામ કરે છે. પણ વર્લ્ડના જેટલું બી ફૂડ સપ્લાય છે એના 73% પોલિનેશન ઇઝ ડન બાય બીઝ. એટલે બીઝ આર એક્સ્ટ્રીમલી ઇમ્પોર્ટન્ટ ફોર અવર ઇકોસિસ્ટમ. એટલે અને અત્યારે બીઝ આર ડાઈંગ વેરી ફાસ્ટ. સો આપણે એમના માટે ચોક્કસ કંઈક કરીશું. સો ઓકે, આમાં એક એક્ઝામ્પલ છે કે એગ્રીકલ્ચર માટે બીઝ આર વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. ફોર એક્ઝામ્પલ, હમણાં અમે એક એક્સપેરિમેન્ટ કર્યો. અમે અહીંયા સુરેન્દ્રનગર પાસે ખોડું કરીને જગ્યા છે, ત્યાં વરિયાળીના ખેતરો છે 3 કિલોમીટર સુધી. તો અમે બીજને સાયન્ટિફિકલી વચ્ચે પ્લેસ કરી અને અમને ખબર પડી કે વરિયાળીના પ્રોડક્શનમાં 17% જેટલો વધારો થયો. રાઈટ? અને અત્યારે મેંગોની સિઝન છે, તો મેંગો, લીચી, પછી કોફી, આ બધા એવા પ્લાન્ટ્સ છે કે જેમાં સાથે એકદમ બધા ફ્લાવર્સ સાથે આવે છે, તો એને પોલિનેશન માટે બીઝ રેપિડલી જોઈતી હોય છે. તો આવા ટાઈમે બીઝ આર વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. અને એક ફન ફેક્ટ છે, આપણે બધા એપલ તો ખાતા જઈશું, તો જ્યાં સુધી ફિમેલ ફ્લાવર એપલનું હોય ને એના પર 10 વાર બીજ ના આવે ને ત્યાં સુધી એનો કલર, એનું થિકનેસ અને એનો ટેસ્ટ એ પરફેક્ટ કોઈ દિવસ ના થાય. અને આપણે સાદી ભાષામાં એને એક્સપોર્ટ ક્વોલિટી કહેતા હોઈએ છીએ. સો મોટા સફરજન, નાના સફરજન, આ કંઈ ક્વોલિટીનો ફરક નથી, આ ખાલી પોલિનેશનનો ફરક છે. પછી કોટન હોય કે ફ્રૂટ્સ હોય, સીડ્સ હોય, નટ્સ હોય, આ બધા માટે બીઝ આર વેરી એસેન્શિયલ. રાઈટ? સો અને તો હવે આપણે ક્લાઇમેટ ચેન્જ તરફ આગળ વધીએ. તો ક્લાઇમેટ ચેન્જમાં ફરક શું પડ્યો છે? તો સૌથી મેજર ઇમ્પેક્ટ આવ્યો છે ટેમ્પરેચરમાં. રાઈટ? તો જ્યારે ટેમ્પરેચરની વાત કરીએ તો બીઝનું જે હાઈવ હોય ને, જે બોક્સીસ તમે જોયા ને, એનું ટેમ્પરેચર ઇઝ લાઈક 32 થી 36 ડિગ્રી સેલ્સિયસ એટલું જ હોય. એમાં બીઝ બેસ્ટ કામ કરી શકે. પણ જ્યારે ટેમ્પરેચર વધે છે, અને ટેમ્પરેચર અત્યારે આપણે અમદાવાદમાં કેટલું 48 ગયું હતું, રાઈટ? તો બીઝ 45 ડિગ્રીઝે મરી જાય. રાઈટ? એટલે પણ બીઝ આર સ્માર્ટ ઓબ્વિયસલી. એટલે તમે જે જમણી બાજુ એનિમેશન જોઈ રહ્યા છો, એ જે ક્વીન વચ્ચે જઈને બધા પંખો નાખે છે, ઇટ્સ વેરી સિમ્પલ કે બીઝ બહુ સ્માર્ટ છે. એ લોકો એમનું પોતાનું એસી જાતે બનાવે છે, અને એ પાણી, વોટર ડ્રોપલેટ્સ કલેક્ટ કરી બધી વર્કર્સને આપી દે છે. અને વર્કર્સ એમાં ફેલાઈ અને એ કુલર કેવું કામ કરે છે કે પાછળથી પાણી આવે અને તમને આમ ઠંડક આપે. સો બીઝ એવી રીતે એમના હાઈવને ઠંડી રાખે છે. રાઈટ? સો મેઇન કારણ ઓબ્વિયસલી ટેમ્પરેચર તો છે જ, અને બીજું એક કારણ છે એમનું જે હેબિટેટ લોસ થઈ રહ્યો છે. આપણે આજે બહુ સારી જગ્યાએ છે, કારણ કે અહીંયા મેં 2 મધપૂડા જોયા, એટલે અહીંયા ઇનફ ફ્લાવર્સ અવેલેબલ છે. રાઈટ? સો અને ક્લાઇમેટ ચેન્જથી એક સિરિયસ ફરક એ પડ્યો છે કે જે ફ્લાવર્સ છે એના બ્લોસમિંગનો જે ટાઈમ છે ને, એમાં ફરક પડી ગયો છે. રાઈટ? એટલે જે સમરમાં ફ્લાવર થવા જોઈએ એ 1 મહિનો વહેલા થઈ જાય છે. તો એનાથી બીજને ખબર નથી પડતી કે ફ્લાવરિંગ આવી ગયું છે ને મારે ખાવાનું ભેગું કરવાનો સમય થઈ ગયો છે. જ્યારે આ ખબર પડે છે ત્યાં સુધી વરસાદ આવી જાય છે ને એ લોકો બહાર જઈ શકતા નથી. રાઈટ? સો ઓકે, બાય ધ વે એક બ્યુટિફુલ ફેક્ટ એ છે કે બીઝ જ્યારે ફ્લાવર કલેક્ટ કરવા જાય ત્યારે પેટર્નને સ્ટડી કરે છે, અને 7 એવા ફ્લાવર્સને યાદ રાખે છે કે એનો બ્લોસમ થવાનો ટાઈમ શું છે.
આ બીજ યાદ રાખી શકે છે આપણને બધાને. એટલે તમે એમ સમજો કે રોજે એ 50થી 1000 ફ્લાવર્સને વિઝિટ કરે છે રોજ. એક ફ્લાઇટમાં એને 15 મિનિટથી લઈને 4 કલાક સુધીનો સમય લાગે છે. રોજની આ ઓછામાં ઓછી 10થી 14 ફ્લાઇટ લે છે. એટલે અને મિનિમમ 25,000 વર્કર હોય છે જે ફોરેજિંગ કરવા જાય છે. સો રોજના 250 મિલિયન ફ્લાવર્સને બીજ પોલિનેટ કરે છે, જે કદાચ આપણે ઇમેજિન કરી શકીએ એના કરતાં ઘણું વધારે છે. એટલે હું બધાને રિક્વેસ્ટ કરીશ કે જેની પાસે બી ગાર્ડન અવેલેબલ છે તો એમાં તમે બી ફ્રેન્ડલી ફ્લાવર્સ અને પેસ્ટિસાઇડ્સનો ઉપયોગ ના કરતા, કારણ કે પેસ્ટિસાઇડ્સ બીઝ આર સો સેન્સિટિવ કે પેસ્ટિસાઇડ્સના કારણે પણ એ ખાસું એમના બિહેવિયર પેટર્ન્સમાં ને બધામાં બહુ ફરક પડી રહ્યો છે, રાઈટ. સો આપણે હવે આગળ વધીએ. આપણે શું કરી શકીએ છીએ, રાઈટ, આ બધા પ્રોબ્લેમ્સ માટે. તો આપણે અલગ અલગ પ્લાન્ટ્સ આપણે એને ઉગાડી શકીએ છીએ આપણા ગાર્ડનમાં કે આપણી જે બી પ્રેમાઇસીસ છે એમાં બી ફ્રેન્ડલી ગાર્ડન્સમાં. આપણે એને બીજ માટે પાણી બહુ જ અગત્યનું છે, જેટલું માણસ માટે છે એટલું જ. સો એમના માટે પાણીના વોટર જે સોર્સિસ છે એ આપણે આપી શકીએ છીએ. તમે બધાએ જોઈએ છે પેલા નળની આસપાસ પાણી બીજને ફરતા, રાઈટ. સો એ એમના માટે પાણી બહુ જ. બાય ધ વે, તમને જ્યારે મધમાખીનું નામ દઉં તો પહેલો વિચાર શું આવ્યો મનમાં? ડંક, રાઈટ, અને હની, રાઈટ. બીજું કોઈને કંઈ તમને ખબર છે બીજનો ફેવરેટ પ્લાન્ટ કયો છે? કોફી. બીઝમાં અને આજના યંગસ્ટર્સમાં એક જ વસ્તુ કોમન છે. તો અને બધાને ખબર છે કે બીજ આપણા ઇકોસિસ્ટમ અને ઇકોનોમી કોઈને ખબર નથી, બટ ઇકોનોમી માટે પણ બહુ સિરિયસલી. એટલે અમે ઓકે, આ બધું જ સરસ જ્ઞાન આપી દીધું. હવે હું શું કરું છું, રાઈટ, મહત્ત્વનું એ છે. અમે શું કરીએ છીએ, અમે મધમાખી અને ટેકનોલોજીને મિક્સ કરી રહ્યા છે. મિક્સ નહીં કહું, કોઈ સારો ગુજરાતી શબ્દ હોય તો મને કોઈ સજેસ્ટ કરો પ્લીઝ. સહઅસ્તિત્વ, સમન્વય. સો અમે એનો સમન્વય કરી રહ્યા છે તમારી સાથે. અત્યારે આપણી વચ્ચે તમે બધા ઘણા મળ્યા. મધુકાંત પટેલ સાહેબ, જે આપણા ઇસરોના એક સાયન્ટિસ્ટ છે, જે અમારા માટે ટેકનોલોજી અને સેન્સર્સ ડેવલપ કરી રહ્યા છે કે જેનાથી આજે ક્લાઇમેટ ચેન્જના હિસાબે બીજના બિહેવિયરમાં જે પેટર્નમાં ફરક પડ્યો છે ને એ આપણે મોનિટર કરી શકીશું કે બીજ કેટલા વાગે એક્ટિવ થાય છે, એનો એક્ટિવેશનનો ટાઈમ પીરિયડ શું છે, સવારે 8 થી 11 કે બપોરે 2 થી 4. કારણ કે હમણાં જ મેં નોટિસ કર્યું કે ઘણા ફ્લાવર્સ એવા છે જે સવારે બ્લૂમ કરે છે, ઘણા એવા છે જે બપોરે કરે છે, ઘણા છે જે રાત્રે કરે છે. આ બધું ડિટેલમાં જાણવા બેસીશું તો શાંત પડશે, એટલે ઉપરથી ફટાફટ કહી દઉં છું. સો એ ટેકનોલોજી બીજું એ ખબર પડશે કે કઈ સિઝનમાં કેટલા ટેમ્પરેચરમાં બીજ કેવી રીતે બિહેવ કરે છે અને ક્યારે એને કેટલા પાણીની જરૂર પડી, એને કેટલું હની બનાવ્યું. સો ઘણા બધા ડેટા. એટલે એમ સમજો કે ગુજરાતના કયા ખૂણામાં કયા બીકીપરે કેટલું મધ કયા ફૂલનું કાઢ્યું અને એની ક્વોલિટી શું છે એ તમે અહીંયા બેઠા બેઠા તમારા ફોનમાં જોઈ શકશો, રાઈટ. એટલે અમે એવું સરસ બોક્સ બનાવી રહ્યા છે. અને બીજ માટે મેં કીધું એ પ્રમાણે ટેમ્પરેચર બહુ જ મેટર કરે છે, કારણ કે જ્યારે આ ફેનિંગ કરે કે એ બધું કરે ને ત્યારે એની એનર્જી બહુ વેસ્ટ થતી હોય છે. અને જ્યારે આટલું ટેમ્પરેચર હોય તો એ ડિસીઝ પ્રોન પણ થઈ જતી હોય છે. તો એમાં ઘણા બધા ડિસીઝ પણ એન્ટર થઈ શકે છે, જેનાથી એને પ્રોબ્લેમ થઈ શકે છે. સો એટલે અમે શું કર્યું છે, આ ટેકનોલોજી અને એક બીજી ડિવાઇસ છે જે હનીને ઇન્સ્ટન્ટ ટેસ્ટ કરે છે. એટલે હની નીકળ્યું, ટેસ્ટ કર્યું અને એમાંથી QR કોડ નીકળ્યો. તો આ સપ્લાય બ્લોકચેન બની જશે કે કોઈ એમાં મિલાવટ કે અડલ્ટ્રેશન કરી નહીં શકે. એટલે આપણે એ કરવાનું છે કે હવે ઓકે, બાય ધ વે એક ફન ફેક્ટ એ પણ છે, બસ આ પતવાનું આવ્યું છે. ફન ફેક્ટ એ છે કે છેલ્લા કોવિડ પછી વેસ્ટમાં 2000 હનીની બ્રાન્ડ્સ લોન્ચ થઈ છે, ઓછામાં ઓછી. અને બધા કોઈની પાસેથી ખરીદે છે. હવે એ એથિકલ બી કીપિંગ કરે છે નથી કરતો એ કોઈને ખબર નથી. એથિકલ બી કીપિંગમાં ઘણું બધું આવે છે, પણ અત્યારે તમને એક બેઝિક વસ્તુ કહી દઉં કે આ બોક્સ છે જેમાં બીજ, એના બચ્ચા, એના લાર્વા બધા રહે છે, જે મેં તમને આગળ બતાડ્યું. એની વચ્ચે આપણે ક્વીન એક્સક્લુડર લગાવીએ છીએ અને એની ઉપર મૂકીએ છીએ સુપર. હવે સુપરમાં એવું હોય છે કે ક્વીન એગ લે નથી કરતી, રાઈટ.
બધા એગ્સ બચ્ચા એનું ફૂડ બધું નીચે છે. એટલે ઘણા બધા જૈન હોય છે ને કે તમે મધમાખીનું ખાવાનું લઈ લીધું, એટલે અમે કીધું આ મધમાખીનું ખાવાનું આમાં છે, આ એક્સ્ટ્રા છે, કારણ કે નેક્ટર ફ્લો વધારે છે એટલે એ લોકો સ્ટોર તો કરવાના જ છે. બીઝ આર હિયર ટુ પોલિનેટ, નોટ ટુ લાઈક એ લોકો એટલા બિઝી છે કે એ લોકો કામ જ કરવાના છે. તો આમાંથી જ આ જ હની કાઢી અને પાછું આપણે એક્સ્ટ્રેક્ટ કરીને મધપૂડો પાછો મૂકી દઈશું. મધપૂડો એટલે પાછો મૂકવાનો કારણ કે 1 કિલો હની બનાવવા 1 કિલો વેક્સ બનાવવા 8 કિલો હનીનો યુઝ થાય. અને 8 કિલો હની બનાવવા તમને ખબર છે કેટલા મિલિયન ફ્લાવર્સમાં એમને વિઝિટ કરવું પડે. સો આવી રીતે અમે એથિકલ બી કીપિંગને પ્રમોટ કરવાનો પ્રયત્ન કરીએ છીએ ઇન્ડિયામાં, રાઈટ. અને થેન્ક યુ. મેં સડનલી થોડું પતાવી દીધું, પણ તમારે કોઈ ક્વેશ્ચન હોય તો મને કહેજો ચોક્કસ, કારણ કે 15 મિનિટ પતી ગઈ હતી આઈ થોટ, એટલે અને બધા બોર ના થાવ એટલે થેન્ક યુ. થેન્ક યુ મિત, દેટ વોઝ અ વન્ડરફુલ પ્રેઝન્ટેશન. આપણે ઘણી બધી વસ્તુ જે જાણતા જ નહોતા આજે આપણે જાણી, અને વેરી ઇન્ટરેસ્ટિંગ ફાઇનર એસ્પેક્ટ્સ of the world of bees, which is so relevant to us. So thank you very much, Meet, for this wonderful information, and it has inspired a lot of people, not only youngsters but people like us, in a big way. Thank you. So now we request our chief guest, Mr. Rajendra Singh, to deliver his address today. Thank He prefers a collar mic. We'll be moving about and we'll listen to him. Thank you. Please, sir, over to you. सबको धन्यवाद, क्योंकि आज की जो बातचीत है वो शिक्षा की नहीं है, वो विद्या की है. शिक्षा कोई देने वाला होता है और वो देता जाता है. लेने के लिए लोग तैयार हैं कि नहीं, वो ये भी नहीं देखता. और जिसको वो दे रहा है वो ले भी रहा है कि नहीं, ये भी नहीं देखता. वो देता रहता है. तो आज का ये जो बातचीत है 1 घंटे की, इसमें शिक्षा नहीं है, इसमें विद्या है. और विद्या कोई देता नहीं है, विद्या खुद लेनी पड़ती है. दोस्तों, आप सब जानते हैं कि मैं राजस्थान से आया हूं. राजस्थान दुनिया में गुजरात का थोड़ा हिस्सा राजस्थान जैसा है, लेकिन पूरा नहीं, पर सबसे कम बारिश होती है. तो राजस्थान के लोग काबुल, कंधार, अफगानिस्तान, म्यांमार तक व्यापार करते थे. 15,000 ऊंट रोजाना जैसलमेर के रास्ते आया और जाया करते थे. जरा इस हॉल में बैठ के सोचो कि जैसलमेर के रास्ते यदि 15,000 ऊंट निकल रहे हैं तो उनको पानी कहां से आता है? कौन पिलाता था पानी उनको? अच्छा, उन ऊंटों को चलाने वाले, उन ऊंटों से व्यापार करने वाले लोग क्या लाभ के लिए बिजनेस कर रहे थे कि शुभ के लिए कर रहे थे? ये एक सवाल जरा ढूंढने की जरूरत है. और जब वो ऊंटों के साथ व्यापार करते थे तो उनको या तो महाजन कहते थे या श्रेष्ठी कहते थे, सेठ जी. और महाजन जो है उसे कहते हैं जो समाज को, समाज के साझे भविष्य को बेहतर बनाने के लिए जोड़ता है. किसको जोड़ता है? पैदा करने वाले और खाने वाले दोनों को जोड़ता है. तो जो जोड़ने का काम करता था उसके बदले में वो मजदूरी कितनी लेता था? कोई बताएगा? इस हाउस में बहुत सारे लोग हैं जो बिजनेस के साथ जुड़े हुए हैं. कितनी मजदूरी लेता था वो? 100 रुपए के व्यापार में 2 रुपए उसकी मजदूरी के थे, और 2 रुपए में 10वां हिस्सा उसका धर्मादे का था. 2 रुपए में से 10वां जो हिस्सा था वो धर्म के काम पर करता था. मैं समझता हूं कि आज की ये जो बातचीत
चंद्रमौली पाठक जी ने भी अच्छे से रखी और देवेश जी राडिया साहब ने भी अच्छे से रखी। इन दोनों की बातचीत सुन के मुझे ये ज़रूर लगा कि ये इतना बड़ा संस्थान है। जब मैं उमेश मुझे लेके आ रहे थे गाड़ी में हवाई जहाज से, तो मैंने उनसे पूछा कि यार मैं तुम्हारी संस्था को जानता वानता तो हूँ नहीं, और मैं जहाँ जाता हूँ ज़्यादा जांच वाँच करके नहीं जाता, पर तुम अब तो बता दो, अब तो मैं तुम्हारे यहाँ आ गया कि तुम्हारी संस्था करती क्या है। तो उन्होंने कहा देखो हमारी संस्था को विक्रम भाई साराभाई ने शुरू किया था, और हम लोग, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई, मुझे अभी याद नहीं है, लेकिन मैंने कहा कि भाई तो ये सब काम तुम्हारी संस्था लाभ के लिए करती है क्या? हाँ। शिक्षा के लिए करती है क्या? हाँ, शिक्षा तो देते हैं हम लोग। तो फिर मैंने सोचा, पूछा उनसे, बहुत प्यार से पूछा कि आज का कार्यक्रम क्या है भाई, मुझे क्यों बुलाया? मैं तो शिक्षा विक्षा नहीं देता। फिर मैंने उनसे थोड़ी, उनमें कहाँ है, आओ बैठे यहाँ। फिर मैंने थोड़ी उनसे और बातें की, और फिर मैंने कहा देखो ऐसा है, मैं ठीक जगह आया हूं। शिक्षा लाभ के लिए, जिसको लाभ कमाना है उसको शिक्षा पानी ही पड़ेगी। लाभ बिना शिक्षा के होता नहीं है, और शुभ विद्या के बिना नहीं होता। तो तुम्हारी संस्था जहां एक तरफ एंटरप्रेन्योर्स को शिक्षा देती है, वहां दूसरी तरफ मेरे जैसे पगलों को भी बुलाती है। तो तुमने मुझे आज विद्या के लिए बुला लिया, तो तुम्हारा संस्थान जो है शिक्षा का काम भी करता है और विद्या का भी करता है। मैं आपको यहां से आगे ले जाना चाहता हूं क्लाइमेट पे, लेकिन ये समझ लेना चाहिए कि ये जो क्लाइमेट वाला मामला है, ये इसका जनक शिक्षा है। ये जो क्लाइमेट क्राइसिस है, ये किसी और ने पैदा नहीं की है, ये केवल और केवल शिक्षा ने पैदा की है। क्योंकि शिक्षा प्राप्त हम इसलिए करते हैं कि हमें जल्दी से जल्दी हाईएस्ट पैकेज मिल जाए, हम अपने देश के आईएएस बन जाएं, आईपीएस बन जाएं, आईएफएस बन जाएं, कुछ तो बन जाए, और वो हम शिक्षा से ही बन सकते हैं, बिना शिक्षा के नहीं बन सकते। तो शिक्षा में तीन तरह की चीजें हम पाते हैं। एक है टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग। टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग इस देश की जितनी भी आईआईटीज हैं, वो सब क्या पढ़ाती हैं? वो मैक्सिमम यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्स, उसकी जो एक्सट्रैक्शन की टेक्नोलॉजी है, वो जो जितनी जल्दी एक्सट्रैक्ट कर सकता है, कम समय में जितना जल्दी एक्सट्रैक्ट करने की टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग इजाद कर सकता है, उसको दुनिया का सबसे बड़ा पैकेज मिलता है। भाई जी, वो बिना एक्सट्रैक्शन करने वाले को नहीं मिलता। वो यदि ये सिखाना जानता है कि कैसे जल्दी से जल्दी कम समय में हम नेचर को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, उसी को मिलता है। तो वो जो मामला है ना, वो लाभ वाला मामला है। तो फिर ये शुभ कहां से आएगा? और ये शुभ तो भारत में था। भारत में अभी भी किसी भी अच्छे पुराने व्यापारियों के घर पे चले जाइए, दोनों शब्द बहुत बखूबी दरवाजे पर बाहर लिखे हुए मिलेंगे। जैसे आप घुसेंगे, राइट साइड में लाभ, शुभ। तो इसका मतलब कल्चर तो अभी भी हिंदुस्तान में है, विद्या तो अभी भी हिंदुस्तान में है, क्योंकि वो दोनों चीजों को जिंदा रखना चाहते हैं। वो रखते हैं कि नहीं रखते हैं, ये बात अलग है। पलिक अपनी अगली जनरेशन को सिखाने के लिए अपने घर के दरवाजे पे तो लिखा है यार। इतना तो अपने देश को सम्मान देना चाहिए कि वो अभी भी जिस चीज को अच्छा मानते हैं, उसको अपने घर के दरवाजे पर अगली जनरेशन के लिए उन्होंने बाकायदा रखा है। तो इसका मतलब उनके मन में लाभ और शुभ दोनों के प्रति इक्वल रेस्पेक्ट तो है।
बट वो क्या कहूं उसको, शुभ के रास्ते पर शायद चलना उसको मुश्किल हो रहा है। लाभ का जो रास्ता है वो थोड़ा आसान है, क्योंकि वो पर्सनल होता है, वो व्यक्तिगत होता है। लाभ जो होता है वो व्यक्तिगत होता है, और जो शुभ होता है वो साझा होता है। इसलिए जो शुभ कर्म है उसको दूसरी भाषा में पुण्य कर्म भी बोलते हैं। जिसको हम शुभ कर्म कहते हैं वो पुण्य कर्म भी होता है। तो आज हमें यदि ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज की बात करनी है तो दो शब्दों को समझ लेना जरूरी है कि भारतीय आस्था में पर्यावरण की रक्षा हमारे व्यवहार में कैसे वो शामिल थी। भारतीय आस्था में जब तक पर्यावरण की रक्षा हमारे व्यवहार में शामिल थी, तब तक भारत दुनिया का सिखाने वाला था, दुनिया को सिखाता था, दुनिया का शिक्षक था। और उसने बड़ी होशियारी से भारतीय लोगों ने अपना भगवान सुनिश्चित किया था। भारतीय लोगों का भगवान कौन था? भारतीय लोगों का भगवान बिजनेस की जरूरत नहीं थी, मंदिर में नहीं रहता था वो। मंदिर तो अब बिजनेस हो गए हैं, मस्जिद भी बिजनेस हो गए हैं, गिरजाघर भी बिजनेस ही हैं, गुरुद्वारे भी बिजनेस ही हैं। वहां नहीं रहता था हमारा भगवान। हमारे भगवान को हम हिंदुस्तानी लोग बहुत अच्छे से पहचानते थे, जानते थे। भय से भूमि, सिंपल तरीके से बनाया था भगवान शब्द। गैस से गगन, स्पेस, वैसे वायु, आ से अग्नि, सूरज, और न से नीर। इन पंच महाभूतों के अलावा हमारा कोई और भगवान हो सकता है क्या? इसीलिए एक बार एक भारतीय से पूछा कि यार तुम बड़े वसुदेव कुटुंबकम, ये सब बड़ी बड़ी बातें करते रहते हो, जय जगत, ये सब बड़ी बड़ी बातें करते रहते हो, पर तुम्हें पता है क्या कि ये दुनिया एक है? तो ये दुनिया एक कैसे हो सकती है? तो उसने कहा कि देखो यार, इस पे मैं तुम्हारी ये विद्या ज्यादा शिक्षा विक्षा नहीं जानता, पर मैं एक बात जानता हूं, आपहा ब्रह्मास्मि, मैं जल हूं, मैं ब्रह्मा हूं, और मैंने ही ये ब्रह्मांड बनाया है, और ये ब्रह्मांड मैंने अपने लिए बनाया है। देखिए आखिर में अपा आपहा ब्रह्मास्मि। तो एक बात बताइए, मैं आपसे सवाल छोड़ के फिर अपनी जगह आता हूं। जब हम हिंदुस्तान के लोग इतनी गहरी बातें अपने व्यवहार में बोल देते हैं कि देखो ये जो प्लेनेट है ना, इसको एक बनाने का काम, ये जो अर्थ है ना, ये पानी के बिना संभव नहीं है। पानी बना, फिर मिट्टी बनी, फिर हमें हवा की जरूरत हुई, वायु, हमें अपना जीवन चलाने के लिए भी, और इस प्लेनेट पे जितना भी जीव जगत है उसको चलाने के लिए सबसे पहले पानी की जरूरत होती है, क्योंकि सिंगल सेल जो है वो पानी में ही होता है। फिर जैसे जैसे पानी हुआ, उसने फिर इस पूरे प्लेनेट को थोड़ा ठंडा करके मिट्टी बनाई, धरती बनाई, फिर बाद में नदियां बन गई, सब कुछ हो गया। लेकिन किसने एक किया इसको? अभी ये यूएन वाले जो हैं वो कहते हैं वन अर्थ। अरे यार, वन अर्थ कैसे होगी? बिना पानी के ये वन अर्थ हो सकती है क्या? सर आप ज्यादा जानते हैं किताबों की पढ़ाई, मुझे उतनी नहीं आती। ये जो पानी है यही इस दुनिया को एक बना सकता है। इसलिए भारतीय शास्त्रों में विविध भाषा विविध वेश, ये तो दुनिया एक है। सब लोग हमारे यहां, सारे संत महात्मा इसको रोज ही गाते रहते हैं कि हम सब एक हैं। तो हम लोग व्यवहार में तो ये मानते थे कि हम एक हैं, और हम सबको एक बनाया ब्रह्मा ने। बोलचाल में जो अनपढ़ लोग हैं वो भी ये बोलते हैं कि ब्रह्मा ने बनाया है, हम सब ब्रह्मा के बनाए हुए, तो ब्रह्मा तो जल ही है। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि यदि हम सचमुच
अपने जलवायु परिवर्तन की चिंता कर रहे हैं, तो हमें ये देखना चाहिए कि ये जलवायु, भाई इसको आगे बढ़ा दो, कौन सा है प्रेजेंटेशन तुम्हारे पास? फाइनल नहीं, 6 तारीख वाला दिखा दो, 7 जून वाला नहीं, 6 वाला। हम लोगों को पता है कि अब दुनिया में बिगाड़ हो रहा है, हम सब जानते हैं कि विनाश हो रहा है, और ये विनाश हो रहा है विकास के नाम पर। जिसे हम विकास कहते हैं वो इतना ग्रीडी बनाता है हम लोगों को, उसमें केवल लालच ही लालच है, और उस लालच के कारण जो हमारी इंडिजिनस नॉलेज सिस्टम है, जो हमारी इंडियन विजडम है, उसका डिस्प्लेसमेंट शुरू हो जाता है, विस्थापन शुरू हो जाता है, और फिर उससे बिगाड़ शुरू हो जाता है, और फिर फाइनली विनाश ही होता है। तो जिसको हम आज विकास कहते हैं, उस विकास ने बहुत कुछ बिगाड़ा है, और उस बिगाड़ को हम लोग थोड़ा उस नजर से देख नहीं रहे हैं। अभी हम ये देख रहे हैं कि इस विकास से हमें थोड़ा आराम हो गया, थोड़ा देखो ये कमरा कितना अच्छा हो गया है, प्लेजेंट लग रहा है। नहीं, यदि ये गर्मी होती तो हम सब लोगों को इतना बैठना मुश्किल होता ना, तो हमें अच्छा लग रहा है। ये जो विनाश है ये हम सबको अच्छा लग रहा है, और इस विनाश को हम लोगों ने मान लिया है कि अब इस विनाश के बिना हमारी गाड़ी चलेगी नहीं, इसलिए ये विनाश अब हमें स्वीकारना ही है। तो विनाश को स्वीकार लिया है हम लोगों ने सैद्धांतिक तौर पर। तो जब हम विकास को सैद्धांतिक तौर पर मान लेते हैं, तो जो कभी कभी हमारे सामने चैलेंजेस होते हैं, फिर हम अपनी चालाकी से उन चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटी में बदलने की कोशिश करते हैं, चैलेंजेस को, क्योंकि हमें मालूम है कि हमारे सामने विनाश है। तो हम, जैसे अभी मीत ने मक्खी का काम शुरू किया ना, तो उसके सामने तो क्लाइमेट चेंज का चैलेंज तो है, बट वो उस चैलेंज को स्वीकार करके एक थोड़ा कुछ अच्छा छोटा काम करना चाहता है, जिससे इस इकोलॉजी में, इको डेवलपमेंट और ये, तो हम कभी कभी अपने चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटी में एक्सप्लोर करने में बहुत कोशिश करते हैं। पर जब हम चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटी की तरह से यूज करने लगते हैं, उस वक्त भी हमारे दिमाग में कहीं यहां पीछे की तरफ हमारा लालच बैठा रहता है, और वो लालच फिर हमें कॉमन फ्यूचर से कभी कभी तोड़ने लगता है, कभी कभी वो कॉमन फ्यूचर से जोड़ता है। जब वो जोड़ता है तो हम उस चैलेंज को एक तरह से एक बेटर अपॉर्चुनिटी की तरह से यूज करते हैं अपने कॉमन फ्यूचर को बेहतर बनाने के लिए। ये जो नजरिया है, ये नजरिया मेरे ख्याल जिस संस्थान में आज हम बोल रहे हैं, और इन्होंने क्लाइमेट पर जो आज एक सेंटर की शुरुआत की है, ये वही नजरिया है। ये जो आज आपने कितना बड़ा क्लाइमेट का एक चिंतन संवाद को शुरू करने की कोशिश की इस सेंटर में, मैं इसको ऐसे ही देखता हूँ कि हम अभी भी इस कोशिश में लगे हुए हैं कि यार ये जो हमारा कॉमन फ्यूचर है थोड़ा बेहतर हो जाए, थोड़ा अच्छा हो जाए, इसमें से ज़्यादा विनाश को हम रोक दें। और हम रोक सकते हैं, हमारे अंदर बहुत कॉन्फिडेंस है, इस विनाश को रोकने का बहुत हमारे मन में कॉन्फिडेंस है। लेकिन कई बार ये जो कॉन्फिडेंस है हमारी गति को बहुत फास्ट कर देता है। जब ये हमारा कॉन्फिडेंस हमारे फ्लो को फास्ट करता है, तब फिर रिस्क आने लगते हैं। यदि हमारा फ्लो स्लो है तो हम बहुत स्मूथली बिगाड़ से बच जाते हैं, लेकिन जब हमारे फ्लो में बहुत फास्ट हो जाता है, तब फिर वही रिस्क आने लगते हैं। इसलिए मैं पूरी स्लाइड को नहीं बताऊंगा, पर आप स्लाइड देख के जरा देखते रहेंगे। मैं कहना ये चाहता हूं कि हम लोग यदि इस पृथ्वी को ये मानते हैं कि ये पृथ्वी हम सब का पोषण कर सकती है, और इस पृथ्वी पर जो भी जीव जंतु हैं उन सबको इक्वल राइट है अपने आप को ग्रो करने का, तो यदि हम सबको इक्वल राइट देते हैं सबको, तो फिर हमारा जो लाइफ स्टाइल है उस लाइफ स्टाइल पर हम लोगों को जरा विचार करना पड़ेगा। यदि हम लाइफ स्टाइल पर विचार नहीं करेंगे तो फिर हम उस नजरिए पे नहीं पहुंच सकते जहां हमें पहुंचना है। कम से कम क्लाइमेट चेंज, अडेप्टेशन और मिटिगेशन की बात करना फिर बेईमानी होगा। इसलिए हमें यह देखना होगा कि हम कैसे इंडिजिनस कम्युनिटीज को, इंडिजिनस कम्युनिटी कौन है?
जो इस नेचर से लेती कम है और अपनी लाइफ में इस नेचर के साथ सरवाइव करने की कोशिश करती हैं। आप मीत का प्रेजेंटेशन देखा ना आपने, वो वही है, बेसिकली वही है। तो हमें जो इंडिजिनस नॉलेज सिस्टम है और जो इंडियन विजडम है उसके साथ थोड़ा सरवाइव करने की कोशिश करेंगे तो हमें लगता है कि हम परिस्थिति को ठीक से बेहतर कर लेंगे। मुझे ये भी लगता है कि हम यदि अपने भारतीय ज्ञानतंत्र को दोबारा से एक बार देखने की कोशिश करें कि जिसे हम भगवान कहते हैं और जिन्हें हम पंच महाभूत कहते हैं, उस भगवान के साथ हमारा रिश्ता टूटा क्यों, ये देखने की जरूरत है। यदि हम आज थोड़ा इस रिश्ते को समझ लें कि भगवान, यदि हमारी संस्कृत में भी भगवान है, गुजराती में भी उसी को भगवान कहते हैं। भगवान शब्द पे कहीं कोई विवाद नहीं है भाई जी। आप तमिलनाडु में भी चले जाइए, वहां भी यदि आप बात संस्कृत में करने लगेंगे ना तो भगवान शब्द पे विवाद नहीं है कहीं भी। वो ये मानते हैं कि ये जिसने हमें बनाया और इस पूरे ब्रह्मांड में जिसमें हम हैं, यही तो हमारा भगवान है। इसके बिना हम कैसे भगवान को मानते हैं। और जब तक हम इसको जानते पहचानते थे, इस भगवान को जानते पहचानते थे, तब तक हमारे व्यवहार में भारतीय ज्ञानतंत्र का सम्मान था और हम नीर नारी नदी को नारायण मानते थे। नीर नारी नदी भारतीयों का नारायण जब तक रहा तब तक उनके लाइफ स्टाइल में, क्योंकि मां जिसे हम कहते हैं, मां तो जननी हो सकती है, वो नरिशमेंट करती है। मां का जो शिक्षण है वो पोषण करता है, पोषण सिखाता है। और ये जो पुरुष है, ये जो पुरुष का दिमाग है वो एनक्रोच करता है, अतिक्रमण, फिर प्रदूषण और फिर शोषण करता है नेचुरल रिसोर्स का। लेकिन मां ऐसा नहीं पढ़ाती। मां के व्यवहार में आप कभी भी देखो कि हम सबकी मां है ना भाई, हम अपनी मां को देख सकते हैं। हमारी मां हमें हमारा पोषण भी करती है और हमें इस प्रकृति के साथ पोषक रिश्तों में जीना सिखाती है। इसीलिए भारतीय लोगों ने नदियों को मां कहा था। लिखित कॉन्स्टिट्यूशन से पहले धरती, नदी, प्रकृति, ये सब मां थी, क्योंकि ये हमारा पोषण करती है और इस पोषण की रिस्पेक्ट थी हमारे मन में, इस पोषण का सम्मान था हमारे मन में। इसीलिए नीर माने लाइफ। हम भारत के लोग जिसे जल कहते हैं वो हमारा जीवन है। और नारी माने जननी, जो क्रिएट करती है। ये नारी ही कर सकती है। नारी मतलब धरती भी नारी है, स्त्री भी नारी है और पूरी नेचर, प्रकृति भी नारी है। नारी केवल स्त्री के लिए नहीं है। ऑल जो भी क्रिएट करती है, जो नया क्रिएट करती है, वो नारी होती है। तो हम भारत के लोग इन नारियों को बहुत सम्मान करते थे। और नदी, इस दुनिया की कोई भी सिविलाइजेशन को फ्लो देने वाली, गति देने वाली नदियां ही हैं। द ऑल टाइप ऑफ द फ्लो इन योर लाइफ विदाउट रिवर नॉट पॉसिबल। जी, तो मैं वही कह रहा हूं कि हम लोग जीवन, जल माने जीवन, नारी माने जननी और नदी माने जीवन के प्रवाह। जीवन को चलाने के लिए आपको कल्चरल फ्लो चाहिए, सिविलाइजेशनल चाहिए, स्पिरिचुअल चाहिए, फाइनेंशियल फ्लो, द ऑल फाइनेंशियल फ्लो रिलेटेड विद रिवर। तो जितने भी हमारी लाइफ में फ्लो थे वो हम जानते थे कि नदियों के साथ जुड़े हैं, और नदी यदि हेल्दी है तो हम भी हेल्दी रहेंगे। इसलिए नदी केवल हमारी भोग की वस्तु नहीं थी। नदी हमारे आनंद की, उत्कृष्ट जीवन का जो उत्कृष्ट पार्ट होता है ना, उसकी जननी थी। अभी तो स्वरूप बदल गया है। अभी नीर, नारी, नदी, तीनों के बारे में जो भारतीय दर्शन है, उस भारतीय दर्शन में उतनी गहराई नहीं है, व्यवहार में नहीं है।
बोलने में तो है, अभी भी भारत के लोग बोलने में तो, मैं कल वहां सुन रहा था तजाकिस्तान में, हमारा एक दोस्त बोल रहा था कि भाई ये जो यूरोप वाले हैं वो हमें जेंडर ब्लाइंड बोलते हैं, ये बिल्कुल गलत है, यूएन की एक बैठक में। लेकिन वो व्यवहार कैसा करते हैं? तो हम अभी भी, मुझे ऐसा लगता है कि हम प्रकृति के ज्ञान में अभी कमजोर नहीं है। ज्ञान तो है लेकिन व्यवहार में नहीं है, और जब ये ज्ञान व्यवहार में नहीं होता तो वो विद्या नहीं बनता। ज्ञान की अनुभूति से आप प्रज्ञावान बनते हैं, और जब आपकी प्रज्ञा आपको अनुभूत करने लगे, आपके अंदर एहसास जगा दे, तब आप उस एहसास से आपको आभास हो जाता है कि मुझे यही करना है, इसके अलावा और कुछ नहीं करना। ये जो स्थिति है वो स्थिति अब हमारी खत्म हो गई, कम हो गई। मैं ये नहीं कह रहा कि खत्म हो गई, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि बहुत कम हो गई है। इसलिए हमारी विद्या कम होती जा रही है और शिक्षा बहुत तेज गति से बढ़ रही है। तो हम क्या इस शिक्षा को विद्या के साथ जोड़ सकते हैं क्या? और विद्या के साथ जोड़ने की क्यों जरूरत है? दोस्तों, मैं एक शॉर्टकट स्टेटमेंट देता हूं। विद्या के बिना आप भारत को कदाचित भी दुनिया को सिखाने के लायक नहीं बना सकते। यदि भारत को अभी भी एक स्वावलंबी राष्ट्र बनना है तो वो विद्या से ही बन सकता है, क्योंकि विद्या में एहसास होता है। आप जब आपको एहसास होने लगता है ना, तभी आप काम करते हैं, नहीं तो नहीं करते। बुद्धि में तो आपकी बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन वो एहसास के बिना आपको करने के लिए तैयारी नहीं करती, आपको करने की ताकत नहीं देती। तो करने की ताकत आती है, उसका एंट्री पॉइंट है एहसास, हिंदी में बोलते हैं, अंग्रेजी में उसको कहते हैं रियलाइजेशन। और उसका जो सेकंड पार्ट है, जो जिसको अंतिम भी कह सकते हैं, वो है आभास, उसको कहते हैं अंग्रेजी में इंटरलाइज। तो ये जो दो स्टेज हैं, ये हमारी विद्या से बनती है। शिक्षा से हमारी बुद्धि बहुत विकसित होती है। हमारा जो माइंड है ना, वो बहुत तेजी से काम करने लगता है, और हमारा जो माइंड का विकास है, मस्तिष्क का विकास है, वो बहुत तेज हो जाता है, उसकी गति तेज हो जाती है। और हमारी जो आत्मा है वो थोड़ी छोटी होने लगती है। जैसे ही बुद्धि का विकास होने लगता है, वैसे आत्मा छोटी होती है। आत्मा डरने लगती है बुद्धि से। कभी कभी हमारी आत्मा हमारी बुद्धि से ही डरने लगती है। तो ये जो बुद्धि है, इस बुद्धि को मैं कम करने का नहीं कह रहा हूं इस हॉल में, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि बुद्धि और विद्या, इन दोनों के बीच कोई समन्वय हो सकता है क्या? इन दोनों के बीच कोई समग्रता हो सकती है क्या? भाई जी, यदि ये समग्रता नहीं होगी तो क्लाइमेट चेंज अडेप्टेशन और मिटिगेशन नहीं होगा। मैं एक कड़वी बात कहने को कहीं भी तैयार हूं। मैंने तजाकिस्तान में भी कल यही कहा। इसलिए मुझे ये लगता है कि हम लोग थोड़ा ये देखें कि जो हमारी मूल स्ट्रेंथ है, उस मूल स्ट्रेंथ को हम अपने व्यवहार में कैसे ले आए। नेक्स्ट मैं इस स्लाइड को इसलिए दिखाना चाहता हूं कि ये हमारे देश के जो नेता लोग हैं, वो कहते हैं कि मैं गर्म पानी पीऊंगा, थर्ड वर्ल्ड वाटर वॉर होगा। लेकिन एक भी नेता हमें कभी ये नहीं बताता कि ये जो वर्ल्ड वॉर होगा, वाटर वर्ल्ड वॉर होगा, ये हॉरिजेंटल होगा कि वर्टिकल होगा। कभी नहीं बताता। बस वो कहता है थर्ड वर्ल्ड वाटर वॉर होगा, कोई भी ऐसे बोल देता है। हमें मालूम है होगा, हम सब जानते हैं, हम देख रहे हैं, वॉर की स्थिति बन गई है। अभी सेंट्रल वेस्टर्न एशिया और हमारा अफ्रीका के देश जलवायु परिवर्तन के कारण अपना देश छोड़ के यूरोप के शहरों में जा रहे हैं। फॉर्चुनेटली अभी यूरोप उनको बिल्कुल बंद नहीं किया, बंद तो किया है लेकिन उतना बंद नहीं किया। जैसे अमेरिका ने बिल्कुल दीवार खींच दी है, बंद कर दिया, अब वहां जा ही नहीं सकता। एक भी क्लाइमेटिक रिफ्यूजी अमेरिका में नहीं जा सकता। अभी यूरोप के शहरों में जा रहा है।
सबसे ज्यादा जर्मनी में, स्वीडन में, फ्रांस में, नीदरलैंड में आज भी आपको क्लाइमेटिक रिफ्यूजी हर शहर में देखने को मिल जाएंगे। तो वो लोग कहते हैं कि ये क्लाइमेटिक रिफ्यूजी ने हमारा लैंडस्केप डेंजरस बना दिया। आजकल मुझे वहां के मेयर बहुत बुलाते हैं कि यार तुमने राजस्थान में रिवर्स माइग्रेशन किया तो हमारा रिवर्स माइग्रेशन कराओ ना। तो मैं उनको कहता हूं यार देखो तुम्हारे हालात अलग है, हमारे हालात अलग है। हमारे पास जब पानी नहीं था और हमारे लोग वहां से केवल जयपुर चले गए थे, क्योंकि हमारे जयपुर में भी पानी था, अहमदाबाद में भी पानी था, शहरों में पानी था। तो जब गांव में पानी आया तो शहर से वापस गांव आ गए, खेती करने लगे। तो हमारा जो था वो माइग्रेशन था। लेकिन ये जो लोग हैं ये डिस्प्लेस्ड हैं। फर्क समझना पड़ेगा ना माइग्रेशन और डिस्प्लेसमेंट में। ये तो भाई जी सब सेंट्रल वेस्टर्न एशिया से और अफ्रीका के देशों से डिस्प्लेस्ड होके जा रहे हैं। जो माइग्रेशन करके जाता है वो अपनी जगह के साथ जुड़ा रहता है, जब उसको मौका मिलता है तो वापस जाता है अपने घर, अपनी जगह के साथ। वो रूट को काटता नहीं है, जोड़ के रखता है, जब भी मौका मिलेगा तो जाएगा। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो कदाचित वापस जाने का सोचता नहीं है। तो मैं उनको कहता हूं देखो यार, देखो तुम्हारी परिस्थिति बिल्कुल अलग है, मेरी राजस्थान की परिस्थिति अलग थी, इसलिए हम वहां रिवर्स माइग्रेशन कर पाए। पर तुम्हारा ये जो माइग्रेशन का मामला है ये तो वॉर का मामला है, क्योंकि वो टैक्स वैक्स तो देते नहीं है, और उनके ऊपर ये जो क्लाइमेटिक रिफ्यूजी की संख्या बढ़ती जा रही है, उनकी लायबिलिटी बढ़ती जा रही है, तो वो थोड़े परेशान है। फॉर्चुनेटली अभी इंडियंस के बारे में ऐसा नहीं है। इंडियंस यूरोप में जाए, अमेरिका में जाए, कहीं भी जाए, इनको कहते हैं यार ये ना ये इकोनॉमिक रिफ्यूजी है। ये इकोनॉमिक रिफ्यूजी है, ये अपने लिए भी कमा के दे के जाएंगे और अपने लिए भी लेके जाएंगे, इसलिए इनसे डरने की जरूरत नहीं। हम लोगों को वो बहुत वेलकम करते हैं, क्योंकि हम उनके लिए कामधेनु गाय हैं, कमा के दे के आते हैं उनको। कल वहां से तजाकिस्तान से भाई जी 700 डॉक्टर पूरी पढ़ाई करके हमारे साथ आज सुबह के हवाई जहाज में आए, और कोई एक भी आदमी नहीं था, केवल भारत के डॉक्टर जो वहां डॉक्टरी कर रहे थे तजाकिस्तान में, वो सब वापस आए। और उसमें सबसे ज्यादा राजस्थान के थे, गुजरात के थोड़े से कम थे, लेकिन सबसे ज्यादा राजस्थानी थे। तो मैं ये देख रहा हूं कि हम अभी भी जहां जा रहे हैं वहां अभी हमारी इमेज उतनी खराब नहीं है, इमेज हमारी ठीक है, लेकिन भाई जी ये इमेज कब तक ठीक रहेगी? आप एक बात बताओ यार, तुम्हारा 70% अंडरग्राउंड एक्यूफर ओवरड्राफ्ट हो गया, तो तुम्हारा ये जो आरबीआई है बंबई में, उस आरबीआई की करेंसी की कोई वैल्यू रहेगी क्या जब तुम्हारे रियल वाटर बैंक में पानी नहीं है? आरबीआई की करेंसी की वैल्यू तभी तक रहेगी जब तक हमारे हर हाथ को काम होगा और हमारे पास पानी होगा और खेती कर सकेंगे, इंडस्ट्री चला सकेंगे, लोगों को रोजगार दे सकेंगे, जब तक हमारी करेंसी की वैल्यू है। लेकिन ये आरबीआई की करेंसी के लिए बहुत चिंतित है, लेकिन जो रियल करेंसी है उसकी भाई जी कोई चिंता ही नहीं है इस देश में। और मैं आपको बहुत, ये आंकड़ा मेरा नहीं है, ये भारत सरकार का आंकड़ा है कि भारत में 72% अंडरग्राउंड एक्यूफर ओवरड्राफ्ट हो गए। ओवरड्राफ्ट की डेफिनेशन ये होती है कि जितना रिचार्ज होता है उससे ज्यादा डिस्चार्ज हो रहा है। सिंपल डेफिनेशन है, इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं। तो जहां जहां पर डिस्चार्ज ज्यादा है और रिचार्ज कम है वो सब एरिया ओवरड्राफ्ट एरिया में है। तो इंडिया अभी 72% एरिया ओवरड्राफ्ट की श्रेणी में है। कुछ क्रूशियल हैं, कुछ सिंपल, अलग अलग स्टेटस है। लेकिन यदि हमारा ये इस अंडरग्राउंड एक्यूफर वापस खाली हो जाएगा तो फिर हमें नहीं लगता कि हम अपने देश को पानीदार बना सकेंगे, और फिर हम पर भी क्लाइमेटिक रिफ्यूजी बनने का फीत नहीं लगेगी, फिर हम भी क्लाइमेटिक रिफ्यूजी बन जाएंगे। और माफ करना, जरा एक कड़वी बात बताऊं, यदि हम ऐसे ही चलते रहे तो अगले 7 सालों में हम भी क्लाइमेटिक रिफ्यूजी की श्रेणी में आ जाएंगे, क्योंकि क्लाइमेटिक रिफ्यूजी हम सबसे पहले पानी में बनेंगे, और सब चीजों को तो हम थोड़ा हैंडल कर लेंगे, और तो हमें हैंडल करने में आती भी है, कर भी लेंगे। लेकिन ये जो पानी वाला मामला है ये हमसे हैंडल होगा नहीं, क्योंकि हमारे पास जो रियल बैंक था
वो था ग्राउंड वाटर। और ग्राउंड वाटर अभी भी आपकी 85% खेती एग्रीकल्चर केवल ग्राउंड वाटर से हो रही है। तो यदि 85% खेती आपके ग्राउंड वाटर से होगी तो ये 28% कितने दिन बचेगा? अच्छा, ये जो डेटा है ये मेरा नहीं है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डेटा है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। नेक्स्ट, हमें थोड़ी इसकी नेचुरल इंजीनियरिंग में जाना पड़ेगा। यदि हम नेचुरल इंजीनियरिंग में नहीं जाएंगे तो हम अंडरग्राउंड एक्यूफर्स को रिचार्ज नहीं कर सकते। और ये नेचुरल इंजीनियरिंग अभी भी गांव के लोग जानते हैं। जहां पानी ऊपर से तेजी से आता है वो उल्टा बांध बनाना सिखाते हैं हमें कि उल्टा बांध बनाओ, क्योंकि उल्टा बांध बनाने से कभी नहीं टूटेगा वो। उसमें ना आयरन की जरूरत, ना स्टील की जरूरत, ना सीमेंट की जरूरत। लोकल मटेरियल में आपने बना दिया, पानी का दबाव आएगा तो यदि ये कॉन्वेक्स डिजाइन का है तो ये और ज्यादा कंपैक्ट होगा, नेचुरल कंपैक्शन आ जाएगा पानी के दबाव से। तो हमें थोड़ी नेचुरल इंजीनियरिंग को लाने की जरूरत है। और जहां हमें नेचुरल डिप्रेशन मिल रहे हैं वहां कॉनकेव डिजाइन के डैम बनाएं, जहां जेंटिल स्लोप है वहां सीधे बना दें। तो हम अपनी नेचुरल इंजीनियरिंग की तरफ अब जाने की जरूरत है। और ये यदि नेचुरल इंजीनियरिंग में हम नहीं जाएंगे तो भारत की अब छोटी छोटी 2/3 नदियां सूख गई हैं, मर गई हैं, पानी का फ्लो ही नहीं है। और जिन नदियों में फ्लो है अब उनका पानी पीने के लायक नहीं है, चाहे वो गंगा हो, चाहे यमुना हो, चाहे कावेरी हो, चाहे कृष्णा हो, सबकी हालत एक से एक ज़्यादा ख़राब है। तो अब यदि आप नदियों की हालत ठीक नहीं करेंगे तो फिर भारत की हेल्थ कैसे ठीक होगी? नेक्स्ट देखो, ये जरा दोनों स्लाइड देखो। ये ऊपर वाली स्लाइड जो है वो 20 फरवरी 1985 की है और नीचे वाली 20 फरवरी सन 2000 की है। और ये नदी है जहां से वो एक आदमी औरत जा रहे हैं ना शहर में, वो नदी है, ये नदी का उद्गम है। सरसों पे फूल कब आते हैं? फरवरी में ही आते हैं ना, तो ये फरवरी की है। ये देख लो कि कहीं आगे पीछे वाली स्लाइड तो नहीं है। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स है ये केवल नेचुरल इंजीनियरिंग से और नेचुरल कंजर्वेशन से ही पॉसिबल है। भारत में 2 तरह की विद्या थी। एक थी संरक्षण की, जो कुछ प्रकृति में है उसका सम्मान करो और संरक्षण करो, रक्षण करो। और दूसरी थी अनुशासित होकर उपयोग करने की। भारत में जो लोग कम से कम पानी खर्च करते थे अपने जीवन को, उनको बड़ा आदमी कहते थे। जैनियों में बहुत सारे जैनियों को मैं जानता हूं 52 तोले पानी में स्नान करते थे, और वो 52 तोले पानी में स्नान करने वाले मुनि सबसे बड़े माने जाते थे। कुल 52 तोले में इतना सा लोटा होता है भाई जी, उसी में सारा बाल से लेके सब कुछ जो भी कुछ उन्हें करना है सब स्नान वस्नान उसमें कर लेते थे। तो उनका ये जो प्रकृति से लेना कम और प्रकृति को अपने पसीने से देना ज्यादा है, ये परिभाषा थी हमारे सम्मान की। इसीलिए वो जो मैंने कहा ना, नीर नारी नदी नारायण है। नारायण कोई अलौकिक चीज नहीं है। नारायण का मतलब सम्मान ही है, रेस्पेक्ट। आप ज्यादा गहरी भाषा में बोलते हो तो आस्था बोल सकते हो, विश्वास बोल सकते हो, ट्रस्ट बोल सकते हो कि हमें उन पे ट्रस्ट था। ये वही नदी है, अभी तो बहती है। वो पेड़ दिख रहा है ना छोटा सा, वो पहले वैसा था, अभी तो पूरी नदी में पानी बहता है। और मैं एक बात बता दूं, ये एक भी पैसा हमने किसी सरकार से नहीं लिया और किसी उद्योगपति से नहीं लिया। तो आप पूछो ये बन कैसे गए? पैसा तो लगा इनमें, पूछो ना यार। हमारे गांव के जो सेठ जी थे वो सब 60 के बाद, 1960 के बाद उन्होंने अपने गांव छोड़ के शहरों में अपने डेरे डाले और शहरों में उन्होंने बहुत पैसा कमाया और वो अपने गांव को भूल गए। तो जब मांगू काका ने मुझे पानी का काम सिखाया तो मैंने कहा काका फिर अब इसको बनाए कैसे? तो बोला तू एक काम कर, ये जो पुराने जमाने में जिसने बनाए थे ना उनको ढूंढ ले और वो इसमें मदद करेंगे। तो मैंने कहा अब कहाँ ढूंढें, कहाँ रहते हैं? तो उसने कहा मैं अपने गांव वाले को तो मैं बता दूंगा।
हमारा जो गोपालपुरा गांव का था, वो दरियागंज में उसकी बंदूक की दुकान है, बहुत बड़ी, दरियागंज के ऊपर बंदूक की। अब उसने तो खरबों कमाया था बंदूक की दुकान से। तो मेरे से मांगू काका ने कहा, राजेंद्र तू जा, तू थोड़ा ठीक से बात करनी जाना है। मैंने कहा काका मैं जाऊंगा तो ठीक नहीं है, तुम तो 5 आदमी गांव के चले जाओ और तुम उससे पैसा मत मांगना। तुम तो उसको ये कहना भाई तेरे दादा ने जोड़ बनाया था, अब वो जोड़ खत्म हो गया, अब हमारे गांव वाले तैयारी कर रहे हैं उसे दोबारा बनाने की, तो हम तो तेरे से इजाजत लेने आए हैं। भाई जी कौन इजाजत ले आजकल? तो वो सेठ जी ना, उसकी आंखों में आंसू आ गए। अच्छा इजाजत लेने आए हो? अरे भाई मुझे तो पता नहीं, हमारे दादा पे तो जब वो उस पे कुल 100 रुपए थे जब उसने गांव छोड़ा, उनकी बही में लिखे हुए हैं, तो 100 रुपए में गांव छोड़ के आया था, तो हमारा दादा जोड़ कैसे बना देगा उठे? तो उन्होंने कहा तेरी बही में लिखा हुआ है, हमारे गांव की बही में भी लिखा हुआ है, तेरे दादा ने बनाया था। बही देख के, तभी तो मैंने भाई जी को कहा कि बही लिए घूम रहे हैं हम। बही देख के वो तो थ्रिल हो गया, इमोशनली इतना इमोशनल हो गया। और उन्होंने कहा अच्छा तो बताओ कितने जोड़ बनाने हैं? उन्होंने कहा देखो यार जोड़ का पैसा हमें मत दो, हमारे गांव में बेईमान लोग रहे हैं, बेईमानी कर लेंगे, हम तो जोड़ चाहिए हमें, तो बताओ कितने जोड़? उन्होंने कहा मैं तो आगे नहीं बना सकता, पर तुम कहोगे तो मैं 1-2 आदमी दे दूंगा हिसाब किताब रखने वाला। तो उन्होंने कहा हाँ तू आदमी दे दे और पैसा दे दे। हिसाब भी उसी का आदमी लिख रहा है और काम गांव वाले कर रहे हैं। उसने भाई जी 21 जोड़ बनाए एक आदमी ने। और एक आदमी को देख के फिर इनमें महाजनों में कंपटीशन बहुत होता है, बहुत कंपटीशन होता है, फिर कोई पीछे नहीं रहना चाहता। उन्होंने कहा यार ये गोपालपुरा वाला ज्यादा बड़ा आदमी है, हम तो 22 वाले हैं, प्रतापगढ़ के सेठ जी हम तो 22 वाले हैं, हम तो 101 बनाएंगे। तो मारे तो पोबारे हो गए। हमें तो पैसे देने वाले गांव में ही आ गए, बस बढ़ने लगे। फिर तो मैं अभी बस इतना ही कहना चाहता हूं कि अभी भी भारत में ना थोड़ी आस्था बची है, बस वो मन में विश्वास होना चाहिए, और विश्वास दिख जाता है कि कैसे विश्वास होगा, कहां विश्वास होगा, उसको थोड़ी एक आर पार दिखने वाली व्यवस्था चाहिए। जब तक आर पार वाली व्यवस्था नहीं दिखती तब तक काम नहीं बढ़ता। जरा ये 2 स्लाइड देख लो, ये मैं खास दिखाना चाहता हूं। 2015 में जब हमें ये वाटर नोबेल प्राइज अनाउंस हुआ ना, तो हमारे वैज्ञानिकों के और जरा जो पढ़े लिखे लोग हैं ना, उनकी पेट में दर्द हो गया। उन्होंने कहा यार ये राजेंद्र तो आयुर्वेद का आदमी है और ये तो बड़े साइंटिस्टों को मिलता है पुरस्कार, इसको कैसे मिल सकता है? तो उन्होंने वहां के राजा को, कार्ल गुस्ताफ को सब शिकायत विकायत जो भी करनी थी करी। तो कार्ल गुस्ताफ ने फिर हमारी सरकार से पूछा, हमारी सरकार ने क्या किया, वो CS झा हमारे इसरो के डायरेक्टर जनरल होते थे, उनको ये जिम्मेदारी दी कि यार देखो ये कोई राजेंद्र है वहां कोई काम कर रहा है, उसको पुरस्कार मिलने वाला है, ये क्या है ये, जरा देखो। किसी प्रधानमंत्री को लेना देना नहीं है इन कामों से, जानते भी नहीं है। तो उनका देखो बताओ। तो उसने 4 तो और साइंटिस्ट थे उसके साथ सीनियर, और कोई 20 लोग और लगा के हमारी जितनी भी साइट थी, वो कोई GIS होता है उस पे सबको चेप दिया, कहां कहां जाके सब निशान। हमें खुद को अपने काम का डॉक्यूमेंटेशन करना आता नहीं था, वो हम कागज वाले आदमी है नहीं, हम तो ठेठ। तो उन्होंने हमारे लिए अद्भुत काम कर दिया, इतनी मोटी रिपोर्ट बना के दे दी। और उस रिपोर्ट में एक ये लाइन लिखी है बीच में, जरा पढ़ लो, ये दोनों स्लाइड्स हैं। एक है 16 मार्च 1994 की वो वाली, और ये है 20 मार्च 2014 की। तो ये जो लाल रंग है ना, ये ग्रीनरी का है। तो इसमें एक लाइन लिखी है, इमेंस इंक्रीज इन वेजिटेशन इज क्लियरली विजिबल इन द रीजन। इस छोटी सी लाइन ने वो पुरस्कार दिला दिया।
तो मैं कह ये रहा हूं कि अभी हिंदुस्तान में और यूएन में वो जो पढ़े लिखे वाले हैं ना, डिग्री वाले, शिक्षा वाले, तभी तो मैंने अभी ये कहा ना शिक्षा अभी बंद मत करो, क्योंकि अभी भी इस डिग्री से काम चलता है। जब तक ये वो पढ़े लिखे लोगों ने ये डिग्री नहीं दी तब तक वो अवार्ड नहीं मिलता। कोई नहीं पूछता भाई जी, तभी तो मैं गाली नहीं देता ना ज्यादा शिक्षा को। मैं कहता हूं नहीं तो मुझे कौन रोकेगा, मैं तो देने लगूंगा। मुझे पता है कि ये शिक्षा वाले जो है वो डॉक्यूमेंटेशन अच्छा करते हैं, कागज पे लिखते हैं सब चीजों को, फिर अगली पीढ़ी को बताते हैं, तो इसलिए उसकी जरूरत तो है। मैं बिल्कुल हृदय से ये नहीं कह रहा कि आज ही शिक्षा बंद करें, पर मुझे कहना यह है कि शिक्षा को विद्या के बिना कारगर नहीं होगी। हम लोग थोड़ा अब कोशिश करें। अभी तक हमारा शिक्षा से काम चल गया, भाई जी आगे नहीं चलने वाला। आगे तो काम चलेगा तो विद्या से ही चलेगा। इसलिए हमें अब क्लाइमेट चेंज अडेप्टेशन और मिटिगेशन की तरफ मूव करना है, तो फिर विद्या को समझना पड़ेगा। विद्या को समझे बिना आप कॉमन फ्यूचर को बेहतर बनाने का ना सपना देख सकते ना काम कर सकते। यदि आप बेहतर बनाने का सपना देखते हैं, आपके मन में है कि कुछ हमें बेहतर फ्यूचर बनाना है, तो फिर विद्या का सहारा लेना पड़ेगा। विद्या जो है ना वो उसमें सिंपलिसिटी है, उसमें कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, जटिलता नहीं है उसमें, इसलिए उससे डर नहीं लगता। उसको जल्दी से आपको मान ताज्जुब होगा, मेरी 2 दिन में 2 पीएचडी की मेरे गुरु ने, इलिटरेट किसान ने। एक दिन में उसने मुझे चमड़े के चरस में बैठा के 25 कुएं जो 150 फीट गहरे सूखे हुए थे, 25 कुएं दिखाए। तो जिन कुओं में कन्फाइंड वर्टिकल फ्रैक्चर्स थे, वहां लंबे पेड़ होते थे, लंबी हरी पत्ती वाले। तो उसने कहा देख, जहां ये हरी पत्ती वाले लंबे पेड़ है ना, यहां धरती में कन्फाइंड वर्टिकल फ्रैक्चर्स हैं। उसको हमारी लोकल भाषा में कहते हैं सीधी सड़क, हिंदी में कहेंगे दरार, गुजराती में भी दरार या झीर कहेंगे। तो जहां ये ऐसी झीर थी, वहां उसने कहा वहां बांध बना देगा तो सूरज चोरी नहीं करेगा पानी की। राजस्थान में सबसे बड़ा चोर सूरज है, और इस सूरज को ये हमें पानी भी सूरज ही लाके देता है भाई। अरेबियन सी में जाके उस समुद्र को डिसैलिनेट करके हमारे लिए बादल वो ही बनाता है ना। लेकिन उसने कहा इसे राजस्थान में मैंने चोरी नहीं करनी चाहिए इसे सूरज को। तो राजस्थान में वो सुनेगा तो है नहीं, सूरज किसी की नहीं सुनता, तो अपनी अकल लगानी पड़ेगी। तो सूरज की चोरी रोकने के लिए उसने मुझे 25 कुएं दिखाए दिन भर में, सुबह से लेकर शाम तक। और जहां कन्फाइंड वर्टिकल फ्रैक्चर थे, वहां उसने कहा ऐसे सीधा बना दे भाई तू बांध, तो पानी नीचे चला जाएगा, फिर सूरज चोरी नहीं करेगा, एवोपरेशन लॉस नहीं होगा, तो हमारे अंडरग्राउंड एक्यूफर रिचार्ज हो जाएंगे और फिर नदी बहने लगेगी। वही हुआ, 12 साल के बाद नदी बही। ऐसे नहीं कि आज ही बताया और कल बहने लगेगी, पूरे 12 साल। हिस्ट्री तो आप जल्दी चेंज कर सकते हैं, पर यह पानी का काम जियोग्राफी को चेंज करने का है। जियोग्राफी टाइम लेती है, वो बिना टाइम के जल्दी से नहीं होती। तो एक दिन में उसने मेरी पीएचडी जियो हाइड्रो साइंस में की, कागज वागज नहीं दिया और डिग्री भी नहीं दी, डायरेक्टरेट डॉक्टरेट वगैरह कुछ नहीं दी। उसने कहा अब तुझे समझ में आ गया, अब तू पेट से अंदाज लगा लेगा कि धरती का पेट कैसा है। और दूसरे दिन उसने नेचुरल इंजीनियरिंग में की। कैसे की? वो जहाँ से नदी आती थी ना, पानी ऊपर रिज पे ले गया, और जहाँ वो छोटी छोटी स्ट्रीम थी, उस स्ट्रीम के सहारे कुल 17 किलोमीटर चले हम एक दिन में, कुल 17 किलोमीटर। और 17 किलोमीटर में उसने जहाँ जैसे स्लोप थे, ढाल थे, मिट्टी थी, और जहाँ थोड़ा कट कम था, वहाँ अलग अलग डिज़ाइन के सिंपल डिज़ाइन सिखा दी कि ऐसे बांध बनाना। नहीं तो यार आयुर्वेद पढ़ने वाले को और फिर गंगा और यमुना में जिसका जन्म हुआ हो, वो कहाँ पानी का संस्कार आता है। मुझे कोई पानी वानी का संस्कार नहीं था बिल्कुल भी। वो तो मेरा पोस्टिंग यहाँ जयपुर में हो गया, 4 साल में भारत सरकार में रहा, तो वो जब भारत सरकार में रहा ना, उसने थोड़ा मेरा दिमाग जरा पानी वानी वाला बना दिया, तो फिर काम शुरू हो गया। तो कुछ ना कुछ आपके अंदर जो क्रोमोजोम्स में कुछ गड़बड़ होती है, तो जब आपकी क्रोमोजोम्स में गड़बड़ होती है तब आपको थोड़ा बहुत पागलपन लगता है, नहीं तो आप पागल नहीं बनते। और जब तक पागल नहीं बनते तब तक ऐसा काम नहीं होता। दोस्तों मैं बस जल्दी से जरा खत्म करेंगे। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि इस तरह का काम गांव से ही शुरू करना पड़ेगा।
बट इसमें पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज को हम रेस्पेक्ट ना करें, हम रेस्पेक्ट करें नेचुरल बाउंड्रीज को। जब हमारे मन में नेचुरल बाउंड्रीज को फॉलो करने की बात आएगी तो फिर हमें रिवर बेसिन पे चलना पड़ेगा। तो गांव के लेवल पर ग्राम सभा को मजबूत करके फिर रिवर पार्लियामेंट बनाना। जैसे हमने, हमारी जब नदी बहने लगी तो सबकी रिवर पार्लियामेंट बना दी, और रिवर पार्लियामेंट ने क्रॉप पैटर्न तय कर दिया। नहीं तो आज हमारे यहाँ पानी, नदी में पानी थोड़ा ही दिखता। वो जब शहर से लोग आए ना वापस, सब गन्ना बोने लगे। गन्ना यदि और 2-3 साल बू जाता तो पानी नहीं बचता। फिर क्या हुआ, उस जमाने में हमारे यहाँ कोई अपनी लड़की देता नहीं था, हमारे लड़के सब कुंवारे रहते थे ज्यादातर। तो जब पानी आया तो सब बाप अपनी अपनी लड़कियों को हमारे लड़कों के साथ ब्याह करने लगे। तो हमारी पार्लियामेंट का नियम यह था कि भाई जो 1 बीघा गन्ना बोएगा उसको 4 बीघे चने बोने पड़ेंगे, और चनों में चिड़िया लगती हैं। तो ये जो नई बहुएं आई थी, इनको चिड़िया उड़ाने का काम हो गया, और वो जो लड़के थे वो गन्ना बेचने जाते थे, कई कई दिन में आते थे। तो मैंने इन बहुओं को समझाया बैठ के, मैंने कहा देखो तुम डरना मत, अब के तुम इसे ये कह दो कि तूने यदि गन्ना बोया तो मैं तेरे नहीं रहूंगी, चली जाऊंगी। और मैंने एक को नहीं भाई जी, जितनी भी नई बहुएं आई थी सबको एक साथ बैठा के समझा दिया। मैंने कहा तुम बिल्कुल बेफिक्र रह के जरा अड़ के बोल दो कि तू अब के तने अब के गन्ना बोया तो मैं नहीं रहूंगी इस घर में। क्योंकि मुश्किल से ब्याह हुए थे, इतनी सारी बहुएं हमारे इलाके में पानी के कारण आई थी। तो ये लड़कों को थोड़ा जरा ज्यादा कमाई का ये होता है ना, जब इनको कुछ नया होता है तो ज्यादा कमाई करना चाहते हैं, तो गन्ना बोने लगे। आज मैं आपसे बताऊं, हमारे इलाके में एक भी खेत गन्ने का नहीं मिलेगा। इन लड़कियों के कारण, इन बहुओं ने इतना अच्छा काम किया, इन बहुओं के कारण हमारा आज हम कह सकते हैं कि हमारे पास पानी है। नहीं तो भाई जी आप जितना रिचार्ज करेंगे उतना ही डिस्चार्ज करेंगे, तो वहां पानी होता क्या। तो रिचार्ज को हमने मेंटेन किया और डिस्चार्ज को कंट्रोल किया। तो हमारा जो क्रॉप पैटर्न है वो पूरा, देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज वही है, लिंकिंग क्रॉप पैटर्न विद रेन पैटर्न। और ये काम केवल पार्लियामेंट कर सकती है, रिवर पार्लियामेंट। दिल्ली वाली पार्लियामेंट नहीं करेगी, क्योंकि दिल्ली वाली पार्लियामेंट में जो लोग जाते हैं उनको वोट चाहिए होता है। हमारी पार्लियामेंट में वोट का खेल नहीं है। हमारी पार्लियामेंट में तो जो नदी के लिए, पानी के लिए काम करेगा वो हमारी पार्लियामेंट का मेंबर होगा, और उसमें आधी से ज्यादा लुगाइयां हैं, क्योंकि इन लुगाइयों ने बहुत अच्छा काम किया, इसलिए हमने उनको मेंबर बनवाया ज्यादातर। दोस्तों, मैं आखिर में बस 2 बात कह के ख़त्म करता हूँ कि हमें यदि हम ये देखें कि ये जो कैलकुलेटिव साइंस है, डेटाबेस और इक्वेशन बेस, ये हमारे दिमाग में डेटा कलेक्शन में लगा देती है हमें बहुत। और जब डेटा कलेक्शन में फिर इक्वेशन बनाते हैं ना हम उसको कैलकुलेट करके, तो कई बार इक्वेशन ठीक से नहीं बैठती, तो फिर हम डेटा को आगे पीछे करते हैं, फिर बदल करते हैं, डेटा में ट्विस्ट करते हैं, और फिर इक्वेशन बना देते हैं कॉन्सेप्चुअल मॉडल पे, और फिर उसको पीएचडी मिल जाती है। तो ये जो यूनिवर्सिटी है ये पीएचडी देती है इस डेटा पर। और जो मेरा गुरु था उसको डेटा फेटा कुछ नहीं आता था, उसके दिमाग में जो साइंस थी वो साइंस विद सेंस थी। यूनिवर्सिटी की जो साइंस है वो डेटा बेस्ड है, कैलकुलेशन बेस है, कॉन्सेप्चुअल मॉडल पर बेस है, इक्वेशन पे बेस है। इसलिए कई बार हमारे हाथ से इस शिक्षा में कुछ गलतियां होती हैं। माफ करना, जरा मैं यहां सब पढ़े लिखे लोगों के सामने बोल रहा हूं। इसलिए हम यदि सिंपल तरीके से प्रकृति के साथ रहना शुरू करेंगे तो इस प्रकृति के अंदर बहुत शक्ति है। ये हम सबकी जरूरत भी पूरी कर देगी और हमें सिखा भी देगी। बेस्ट टीचर है नेचर। जो सबसे अच्छा शिक्षक जिसको हम कहेंगे वो हमारी ये प्रकृति है। तो क्या हम इस प्रकृति से सीखने की कुछ कला शुरू कर सकते हैं क्या? हमारे पास क्या ये कुछ कला है क्या कि हम, टाइम ज़्यादा हो गया, मैं बस ख़त्म करता हूँ।
आपके मन में कोई सवाल हो तो पूछ लो, बस मैंने थोड़ा ज़्यादा समय ले लिया, माफ़ करना। अब आप लोग सीधे सवाल पूछ लें कुछ हो तो। यस, अब माइक दे दो कोई पीछे। सर, मेरा नाम विप्लव है, मैं भूंगड़ू प्रोजेक्ट के साथ काम करता हूँ। मेरा प्रश्न ये था, आपने जो बताया शिक्षा और विद्या, अटल भूजल को आप किस तरफ से उसी प्रोजेक्ट के अंदर, कॉन्सेप्ट के अंदर डालना चाहते हो? देखो, अटल भूजल एक अच्छी कोशिश है इस सरकार की, लेकिन वो ऊंट के मुंह में जीरा है। आप समझते हैं ऊंट के मुंह का जीरा? आप डिस्चार्ज तो इतना ज्यादा कर रहे हैं पूरे देश में, और रिचार्ज करने के केवल मॉडल बना रहे हैं। कहीं भी एक भी जगह, अभी अटल भूजल को 2 साल तो पूरे हो गए ना चलते हुए, एक भी जगह ऐसा नहीं है जहां पानी ऊपर आया हो। और यदि एक आधी जगह आ भी गया तो पूरे भारत में तो पानी चाहिए। मैंने कहा 72% ओवरड्राफ्ट है, और ये हमारी भारत सरकार का ही डेटा है। इसलिए मैं कल भी आपके मंत्री जी के साथ बात कर रहा था, वो भी मेरे साथ थे वहाँ तजाकिस्तान में, आज सुबह मेरे साथ उसी हवाई जहाज में आया, और वो सेक्रेटरी भी थी, देवाशीष भट्टाचार्य। मैंने कहा भाई तुम ये जो छोटा सा अटल भूजल चला रही हो, ये क्यों दिखाने के लिए चला रही हो? किसको राजी करना चाहती हो ये दिखा के? उन्होंने कहा नहीं, इससे एक वातावरण बनेगा, एटमॉस्फेयर बिल्ट होगा। अरे तो मैंने कहा एटमॉस्फेयर बिल्ट होगा तो अभी तो 2 साल से ज्यादा हो गया, तो अब इसको थोड़ा रीएप्लीकेट करने और स्केलिंग अप करने का कुछ करो। उन्होंने कहा नहीं, वो अभी जरा सरकार की तैयारी नहीं है। समझ में आ गया भाई मेरी बात? समझ में आ गई ना? तो यार ताली बजा दे, फिर क्या बात है। हाँ, इतनी सीधी भाषा में तो मैं बोल रहा हूं जी। हाँ 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 हाँ, लगभग जो अभी प्रभावित हो रही है उसकी संख्या 48 के आसपास है। 48% 48% पॉपुलेशन ऑफ इंडिया आज आपकी सिक्योर वाटर के साथ नहीं है, सुरक्षित सेफ वाटर के साथ नहीं है। जी तो रहे हैं, बीमार हो रहे हैं, और जो उनकी कमाई है वो बीमारी पे खर्च हो रही है, क्योंकि जब पानी बीमार होगा तो आपका स्वास्थ्य भी खराब होगा। ये अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि हमारी धरती और हमारा पानी, उसकी जो बीमारी है वो फ्लो की बीमारी है, कार्डियक डिजीज है उसको, लेकिन उसका जो इलाज करने वाले हैं वो ब्यूटी पार्लर वाले हैं। बीमारी है हमारे पानी की कार्डियक फ्लो की बीमारी है, और हम इलाज कैसे कर रहे हैं? ब्यूटी पार्लर के यहां ले जा रहे हैं। तो ये जो अटल भूजल है वो वही है। चलो, मैं कहना नहीं चाहता था पर कह दिया मैंने। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हाँ हाँ, ले लीजिए ना भैया। देखो, यदि आप मुझे ऐसे सिंपल भाषा में पूछोगे कि डैम बनाने चाहिए क्या, रिवर फ्रंट व्यू बनाने चाहिए तो क्या, तो भाई राजेंद्र सिंह ने बिना किसी सरकारी मदद के 13,800 डैम बनाए हैं। सुनो, चेक डैम नहीं, तुम तो डैम की भाषा में आ जाओ ना। आपको यह देखना पड़ेगा कि जो स्ट्रक्चर आप बना रहे हैं, जो तालाब बना रहे हैं या जोहड़ बना रहे हैं या डैम बना रहे हैं, वो कितना नरिश कर रहा है नेचर को, वो कितना रिचार्ज कर रहा है आपके अंडरग्राउंड एक्यूफर को, और कितना एवोपरेशन कंट्रोल कर रहा है। प्रॉब्लम यही है कि हमने आजादी के बाद इंजीनियर और टेक्नोक्रेट को एक कोने में बैठा दिया, सारी पावर उसके हाथ में दे दी, और जो हमारे जियो हाइड्रो साइंटिस्ट हैं उनको बेचारों को एक कोने में बैठा दिया। कभी भी इंजीनियर जियो हाइड्रो साइंटिस्ट के साथ बैठकर बात नहीं करता कि हम कैसे रिचार्ज कर सकते हैं, एवोपरेशन कर सकते हैं। तो जो मैंने कहा ना विद्या और शिक्षा की बात, वो साइंस और टेक्नोलॉजी को भी इंटीग्रेट करने की बात है। भाई बहुत अच्छा सवाल पूछा है, ये सवाल मेरे दिल के बहुत करीब है। जब मैंने ये काम शुरू किया था तब मैं माइनिंग को
इंडिकेटर ऑफ डेवलपमेंट मानता था, मैं उसको विकास का पैमाना मानता था। लेकिन जब हमारे जिस तहसील की बात कर रहे हैं, पालपुर एक गांव है मलाना के पास नीचे, वहां का एक छोटे लाल मीणा था। उसने कहा, ओ राजेंद्र, तू कहीं करे छे, तू कितने जोहड़ बना देना, ये माइंस चलेंगी तो हमारे कुएं में पानी को नहीं आना। ये जितना पानी है माइंस में वो सब हमारे जो कुओं का पानी है वो वहां चला जाता है। तो मैंने कहा, काका फिर काई करे? बोला, भाई हमारे बस की इसका उपाय क्यों नहीं, ये तो बड़े लोग हैं, बहुत बहुत बड़े लोग हैं, पर कुछ करना चाहिए, तू कर सके। उसने कहा, तू कर सके। तो उसकी बात मुझे लग गई। तो राजीव धवन से तब तक मेरी दोस्ती हो गई थी 80 के दशक में, और आया ही था वो अमेरिका से वापस। तो प्रेम भाई ने मेरा उनके साथ जरा ये करवा दिया, और फिर बाद में अनिल अग्रवाल ने भी करवा दिया परिचय। तो मैं राजीव धवन के पास गया, तो उसने कहा, अच्छा ये ज़मीन किसकी है? तो मैं तो जानता नहीं था किसकी ज़मीन है यार, मैंने कौन सा वो सब देखा था। मैंने कहा ना, मैं अनपढ़ आदमी, तो मैंने कहा, अच्छा मैं पता करता हूँ। तो मैंने अपने वापस तहसीलदार को फ़ोन किया। तहसीलदार ने कहा, नहीं नहीं सर, ये ज़मीन तो हमारी है। तो मैंने कहा, ये तो सरिस्का टाइगर प्रोजेक्ट है। तो फिर वो चुप हो गया। तो वो ज़मीन थी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की, 250 स्क्वायर किलोमीटर ज़मीन, जो इनकी तहसील है राजगढ़ की, मलाना, गोवर्धनपुरा, तिलवाड़ी, तिलवाड़, पालपुर, ये सब इनकी तहसील के, ये सारे माइनिंग में थे। हमने मुकदमा किया सुप्रीम कोर्ट में, तो पहले ही एक झटके में कुल 478 माइंस बंद की। तब एक बहुत ग्रेट चीफ जस्टिस, ऑनेस्ट चीफ जस्टिस थे, उनका नाम था जस्टिस वेंकट चलैया। एक झटके में बंद कर दी, और सरकार को बहुत ताड़ा, और उसको बुलाया कमलनाथ को कि तुम एक तरफ ये फॉरेस्ट और ये प्रोटेक्शन और कंजर्वेशन के नाम पर देश का पैसा खर्च कर रहे हो, और दूसरी तरफ इसमें माइंस चलवा रहे हो। फिर ये जब ये बंद हो गई, तो फिर मैं धीरे से जाके मैंने राजीव धवन से कहा, भाई जी ये तो पूरी अरावली में चल रही हैं खदानें। मैंने कहा, हिम्मतनगर गुजरात से लेकर और दिल्ली रिज तक चल रही हैं। तो उसने कहा, अच्छा। तो फिर उन्होंने ये अरावली इको सेंसिटिव रीजन है, और इस पर पूरा एक केस करके फिर मुकदमा आगे किया। दोस्तों, मुझे बताते हुए गौरव है, जो ये कह रहे हैं माइंस तो अभी भी चल रही हैं, चोरी से चल रही हैं, लेकिन 28,000 गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली की अरावली की माइंस बंद कराई। और दोस्तों, उस वक्त मेरी तो कोई औकात भी नहीं थी, कोई परिचय भी नहीं था। आजकल तो मुझे सब बहुत सारे लोग जानते हैं। तब तो मैं एक अनजान युवा था, लेकिन बिना डरे बंद हुई। अब चोरी उचक के चलेंगी, इस देश में चोरी से सब काम होते हैं, तो भाई मैंने अब थोड़ा सा अपने आप को पानी और नदी में डाल दिया है। मुझे नदी में ज़रा ज़्यादा गुच्छक मारने में मज़ा आता है, तो नदी में मुझे लगता है कि नदी में ही रहना है। तो अभी मैं कहाँ तक माइंस के खिलाफ रोज लड़ता फिरूंगा। तो अब कुछ काम तुम उठा लो यार, दोस्ती में चलो तुम। वाह, बिल्कुल, हाँ हाँ। नदी में जब इलीगल अभी इसके बाद आप बात कर सकते हैं। हाँ, 5 मिनट। अशोक, मैं तो तुम्हें पता ही है आंसर तो मेरा, पर तुम क्यों, अब चलो, अशोक श्रीमाली है, सब जानते हैं आप। थैंक यू राजेंद्र जी, इतनी अच्छी बात की, तो ये तो 1-2 घंटे चलेंगे प्रोग्राम, लेकिन अभी बंद करना है। एक मोमेंटो है EMS से, राजेश साहब will you give it? मैं अपना गिलास तो खाली कर दूं, अपने गिलास में ना छोड़ूं कुछ। थैंक यू भाई जी।
thank you for this really wonderful expose on this topic. જેટલી મજા એમને સાંભળવાની છે એટલી જ એના કરતાં ઘણી વધારે એમને જોવાની છે ફિલ્ડમાં, અને એ જે કામ કરે છે એ જોવાનું છે. બોલવાનું તો એની એક ઝલક છે, પણ ત્યાં જઈને જોવાનું. અને મને લાગે છે એ મેં જુદી જુદી ટૂર્સ ગોઠવે છે, તો અમે એક ટૂર એમના વિસ્તારમાં જઈને જોઈએ, અને કદાચ આપણે આ વન્ડરફુલ સેન્ટર એએમએ ક્લાઇમેટ સેન્ટર ફોર ક્લાઇમેટ મેનેજમેન્ટ નીરુભાઈ દેસાઈ સેન્ટર જે કર્યું છે એના અંડર દેટ ઓસ્પિશિયસ મે બી એક ટૂર દરેક વર્ષે જુદી જુદી જગ્યાએ એ ટૂર્સનું પણ આપણે કાર્યક્રમ કરીએ. બિકોઝ ચંદ્રમૌલીજી હેઝ વેરી રાઇટલી સેડ કે ભલે આપણે 2 કે 3 કાર્યક્રમ કરીએ, પણ એવા કરીએ કે જે સૌથી ઇફેક્ટિવ કાર્યક્રમ રહે. અને ટુડે વોઝ સર્ટનલી an extremely effective program. I think it's transformed the way we see. नज़रिया जो बोलते थे कि जो नज़रिया से हम देखते हैं, so that has been a transformation through his work and everything else. We would like to thank Dr. Mayur Joshi for his wonderful contribution, Shri Chandramouli Pathak ji, the press and the media, family members of Nirubai Desai who have been here, of course the participants, and our wonderful speakers today, Meet Joshi for his really enlivening and enlightening thing, and we want to all want to let's give a big clap. And then let's have a really big clap for Rajendra ji. This point which is made about lifestyles, it's so important, but I'm glad that in 2015 जो पेरिस में जो क्लाइमेट चेंज की कॉन्फ्रेंस हुई थी, तब मोदी जी ने बताया था सेंटर को कि एक किताब बनाया, परंपरा उसका नाम है, आपने तो देखी होगी निखिल, कि जिसमें भारत की परंपरा और जो क्लाइमेट फ्रेंडली प्रैक्टिसेस है उनको जोड़ के एक लेट पीपल अंडरस्टैंड कि जो हमारी परंपरा છે અત્યારે નેક્સ્ટ વીક will be published ગુજરાતની પરંપરા through the climate change department, and I hope all of you get to see it and take it. It is also, and what is important is you please add to it. आज जो जानकी जो एडिट कर रही है वो यहाँ ही है, तो जितनी बात आपको मिले, because when we talk to people they all say कि भाई આ એક વસ્તુ રહી ગઈ આમાં, અને they are very simple things. અત્યારે जो आम की सीज़न है, तो हम यहाँ बारिश गिरने शुरू हो गए तो हम आम खाना बंद कर देंगे, लेकिन इन बॉम्बे इन प्लीज पीपल डोंट नो अबाउट सीजन्स, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ नॉट नोइंग अबाउट सीजन्स दे वांट इट ऑल ईयर. तो हम उसमें क्लाइमेट चेंज से हम मॉरिशस से लाएंगे, दिल्ली से लाएंगे, वी विल बर्न फ्यूअल. नाउ दिस इज अ वेरी सिंपल थिंग कि यू डोंट आस्क फॉर मैंगोज आफ्टर द मानसून, but that is a climate change action which has to be done. I just wanted to say just one small thing about business and what you said. I was on the government committee to approve a proposal, very large proposal from Ahmedabad, Gujarat, textile mill, and they came and said कि भी हम पर्यावरण को कुछ नुकसान नहीं कर रहे. देखो हम कोई पेड़ काटने वाले नहीं है, यहाँ कोई पशु पंखी तो है ही नहीं, हम कुछ नहीं करने वाले. उन्होंने पानी का सोचा ही नहीं था, बिकॉज पानी वो इमीडिएटली और जमीन નીચેનું પાણી, જમીનની નીચેનું પાણી, એટલે then કેલ્ક્યુલેશન કર્યું તો it seemed that 80 villages would get, all their wells would go dry if this project was passed. Now what was done in Gujarat was, instead of saying कि नहीं pass करेंगे, we said you come up with a proposal that will prevent this. In 3 months' time, they came up with a proposal where 95% of the water would be recycled. And they gave an indemnity that if any one of the wells in these 80 villages go dry, we will see to it that we will repair it. Now that is the correct way of dealing with industry. Instead of saying no, yes, आप भी अपना सुझाव करो. Not only that, because they knew how to do it, उसकी भी उन्होंने कंसल्टेंसी फर्म शुरू कर दी. ये गुजरात का एक गुजराती कल्चर है, हाँ?
तो उनकी भी एक कंसल्टेंसी फर्म करी, वो भी बहुत अच्छा काम कर रही है आज. हाँ? तो ये जो है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग जो करना है, that is what we require. We again, it's wonderful to hear Rajendra Singh always, and आप आते रहिए, yeah. And but I think AMA will certainly come there. And on behalf of AMA, I want to thank all the audience, wonderful audience who sat down. And I think even if the program was allowed for another hour, we would all be sitting here. It is so nice, but all good things come to an end. Thank you very much. But there is a pledge. There is a pledge which Chandramouli and they have done. So let me just read it and we can all follow it. Huh? It says, I take the pledge now. I take the pledge now. I pledge to take individual action. Khade hoke. I pledge to take individual action to protect the environment. I pledge to remind my friends, family and others about the urgency and importance of climate change in their daily actions. Every day, I will live my life on earth in a manner that contributes to sustaining nature for future generations. Thank you. I also wanted to just end by saying that just like he showed a wonderful satellite map with more green dots, Ahmedabad city has really lost a very large part of its green cover. We are extremely less compared to everywhere else. With the municipality, with the forest department and with the community, we also have taken a pledge that this year, coming from July, we will plant in private lands, in schools, colleges, hospitals, everywhere else. और जैसे राजेंद्र ने बोला कि पेड़ और पानी का जो संबंध है, पेड़ is not only for climate change, it's also for pollution, it's also for heat, but it's also to see that groundwater recharge ठीक तरह से हो रहा है. So पेड़ और पानी का that relationship is there, and let us all join that. It's called Haryalu Ahmedabad, but we would like all of you to join that. Thank you. Thank you. Just I'll take 1 minute. On behalf of Nirubhai also, I would like to give a small gift to both our guests. I will request Chitra, Nirubhai's daughter, and our trustee Pratima Ben to give. And this is a symbolic gift because Nirubhai was very fond of old things. So we thought this will be something very interesting. And Parul will give to Meet. Thank you very much for all of patience. Thank you very much.